Okay, so guys, let's start. To start with, guys, our days are quite defined about we've been starting something new. But before we enter there, it is extremely important that we know the at least background of what we are going to learn and how this market have erupted. So let me start with it. Okay, I think we all know that today we are going to start with derivative. But before I get into derivative, let's understand what do you mean by derivative and where the derivative have actually come from. Let's start. First, now guys, let's talk about pure business. And before even we go for business, let me write this one term called future. Now this is not, when I'm writing the word future here, I simply mean past, present, future. Okay, this future stands for my past, present, future. Now you tell me one thing, when I talk about future, what is one thing you know about future? That future is? We all know about it, right? Now when I talk about the future, we all know that the future is uncertain. Now when future is uncertain, uncertainty will now bring a lot of risk. What is risk? That we are not aware of what exactly is to be done. We are not aware of how the price, how the situation would be. And as a businessman, thank you. Now, as a businessman, one thing we would like to do is we would like to avoid, we would like to limit at least, we would like to control to whatever best extent we can, we would like to limit, control our risk. In fact, when I say about limiting, controlling risk, we also have a financial term for it. What do you call? What do you call limiting your risk? Protecting your risk. है ना बच्चा? So that is hedging. Now, I don't know, practically speaking, honestly speaking, I don't know how many of you all are actually aware of derivative market. How many of you all are aware? Just for my knowledge, I want to know. कितने लोगों को derivative financial market का, capital market के बारे में थोड़ा बहुत knowledge तो है, मतलब knowledge है. मैं तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा इसमें. अच्छा, तो 3-4 हाथ ऊपर. Without shut up. Now, ये गर्दी बड़ा 1-2 संडे का तेरे को मालूम है. बाद में वापस इक्विलिब्रियम आ जाता है. अपने आर्बिट्रेज में कैसे इक्विलिब्रियम आते. So, है ना? Nice. So let's get into it. So guys, let me assume that you have absolute no knowledge about derivative. Why? Because my today's session, when I go for derivative, it is important that all my students here know derivative in as is form as much as I know, because when the sums will come at that point of time, we should be aware of what is given. I've told you, especially in this derivative segments, be it forex, be it derivative, be it interest rate swaps, futures, the only problem which student does, only big mistake which people do is they don't know what the question is. What is question saying? So I want to spend enough time for you to know the background. Okay, so let's get into the background. What is derivative? Okay, every student have heard derivative for the first time when they were in foundation or maybe 11th 12th. था ना वो तभी derivative once. Now, but this is obviously not at all related, connected, got nothing to do with that derivative. Okay, totally nothing to do with derivative. Most of you all have any which was left at an option. Now, to start with, where is derivative started? I'll give you an example, a classic example. Almost all my students know who have studied from me, and who have not studied from me, let me tell you, I was in my entrepreneurial drive when I was like around 26.
See. So I was in my entrepreneurial drive, and there I used to manufacture packaged drinking water. So guys, in a packaged drinking water, let me now purely talk about business. In packaged drinking water business, there was one raw material which was plastic. Okay, so if you look about your Bisleri, Aquafina, Kinley, in Bisleri, Aquafina, Kinley, इन सारे bottles में या कोई भी ये कोई भी बिजनेस में आप समझने की कोशिश करो कि वो जो बॉटल बनता है बच्चों, वो बॉटल इज मेड आउट ऑफ प्लास्टिक. Now when that bottle is made out of plastic, in my business, the highest risk percent was the price of plastic. The plastic market, okay, is majorly dominated by one or two players at the very large scales. And since it is dominated by one or two players, what would happen? They would dominate the price. तो वहां पर ऑलमोस्ट मोनोपोली जैसा चलता था. अब हुआ क्या बच्चों, उसका प्राइस आता था से फॉर एग्जांपल 110 पर केजी. ऑल फिगर्स आर फैक्ट्स, ओके, मे बी दिस फिगर्स आर ऑफ 2016, बट दिस आर ऑल फैक्चुअल डेटा. 110 पर केजी, ओके, 110 रुपये किलो प्लास्टिक. अब मेरी बॉटल का साइज था 16 ग्राम्स. हाउ मेनी ग्राम्स? 16 ग्राम्स. यानी कि एक नॉर्मल बॉटल 1 लीटर बॉटल वुड वे अराउंड 16 ग्राम्स. नाउ कम्स द गेम. आई वाज आल्सो हैप्पी. चलो एक काम करो, 110. अभी 1 किलो में कितना बॉटल बनेगा? हाउ मेनी 1 किलो इज हाउ मेनी ग्राम्स गाइस? थैंक यू सो मच. देखो 1 किलो में कितना ग्राम बन रहा है. देखो 1 किलो में कितना ग्राम बन रहा है? 62.5 bottles. So it was 62.5 bottles I used to make out of 110 per kg. But this 110 per kg were the prices during off seasons. Maybe you can call it as a rainy season, or maybe you can call it as a winter season, where the consumption of plastic bottle was very less. Now what used to happen is, as there arised a peak season, this price would vary from 160 to rupee 180 per kg. अब ये प्राइस 160 से 180 जैसे ही जाएगा, आई रिपीट, ये प्राइस जैसे 160 से 180 जाएगा, आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड. अब क्योंकि भाव बढ़ गया, मेरे 1 किलो में ज्यादा बॉटल बनेगा कि उतने ही बॉटल बनेंगे बच्चों. नाउ व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, नाउ दिस वाज द मेजर थ्रेट. And plus, I used to call it, when we heard about Potter's 5 principle, in my business, I was exposed to bargaining power of supplier also and bargaining power of the buyer also. इसलिए बंद करना पड़ा ना. Now, bargaining power of supplier, because we used to order 1 ton, 2 ton, 3 ton, which was very less quantity for them. So they would always have the bargaining power. Bargaining power of the buyers, because our brand was not that new brand. So for us to sell our product, it used to be always very difficult. And therefore bargaining power of the buyer was to always prevail. Now what is the game, Davda? Here 160 again 16 gram, तो अभी भी 62.5 बनेगा. Let us take a price of 180. Let me show you this. 62.5 और इधर प्राइस था 110 और 62.5. Can you tell me my price per bottle in each case? 100. Calci guys, we'll need a lot of time. Calci, come on. 1.76 और इधर कितना हो जाता है बच्चों? 2.88. Now you guys try to understand. If I do not predict my future, if I do not hedge my risk, if I do not control or protect my uncertainty, one thing I am completely unaware of, guys, if the prices goes up, you try to understand, 1 रुपया प्रति बॉटल प्राइस बढ़ जाएगा, विच इज एक्चुअली स्पीकिंग माई प्रॉफिट मार्जिन उतना ही है, कभी कभी उससे भी कम है. सो देन इट वुड सर्टनली हैपन कि बॉस पीक सीजन में जब धंधा बहुत अच्छा होगा, तब तो मैं कुछ कमाऊंगा ही नहीं. क्यों नहीं कमाऊंगा? क्योंकि प्राइस में चेंज नहीं कर सकता. प्राइस चेंज किया तो कस्टमर वैसे ही फेंक देगा और सप्लायर मेरे को सस्ते में दे नहीं रहा है. तो ये वाला रिस्क है ना, हर एक धंधे में अलग अलग फॉर्म में होता है. This is what I was talking about. So I'll again come down to the background. We are doing derivative, but before I go to derivative, let me show you the reality. So if I talk about future, you have to understand where this market have come from. If I talk about future, one thing is common, we all would agree about future is the uncertainty. With that uncertainty comes a lot of risk. And what is the kind of risk? So I just took a simple example, the example which I have faced in my life. All the figures are factual figures, guys. Price of raw material, price of one bottle will go up from 1.76 to 2.88 during the peak season.
जब मेन धंधा होगा तभी ही मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा, एंड दैट वुड बी द वर्स्ट थिंग हैपनिंग विथ मी. एंड नाउ टू प्रोटेक्ट सच काइंड ऑफ रिस्क ओनली derivative market actually took place. However, it is altogether on the different terms in today's world. It is played around differently, but originally, my dear friend, derivative started like this in late 19th century. Okay, late 19th century, the first emerge of this market, first time when the derivative could have been officially seen around was when farmer started worrying about the price they will get for their crop. That was exact time when derivative came in Chicago. Farmers started worrying about what would be they get about the crop. अब क्या होगा उन लोगों ने जो किया, maybe let us start from a example. से एक फार्मर है और वो फार्मर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके क्रॉप का उसको 80 पर केजी मिलेगा. ओके, उसको 80 पर केजी मिलेगा. बट नाउ ही इज वरीड अबाउट इट कि भाई व्हाट इफ ही डज नॉट गेट द प्राइस. सिमिलरली देयर इज अ होलसेलर एंड होलसेलर इज एक्सपेक्टिंग कि भाई मैं फार्मर से 80 पर केजी में लूंगा. नाउ दिस इज वेयर एक्चुअली द गेम स्टार्टेड फ्रॉम. दिस इज वेयर द एंटायर बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम. अब क्या हुआ, फार्मर ने बोला यार ये तो प्रॉब्लम है, आज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आज मैं इतना खून पसीना बहा रहा हूं, आज मैं इतनी फार्मिंग कर रहा हूं, सब मेरा टाइम दे रहा हूं, सब कुछ इसको दे रहा हूं, एंड व्हाट इफ द क्रॉप प्राइस ड्रॉप दैट टाइम. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम होलसेलर केम अराउंड विद द पिक्चर. होलसेलर बोलता है कि यार ये भी बराबर है कि मैं अगर इतना सब मेहनत कर रहा हूं, मैं पूरा बिजनेस सेटअप कर रहा हूं, एंड व्हाट इफ आई डू नॉट गेट द क्रॉप प्राइस एट द प्राइस आई एक्चुअली वांट देम टू. नाउ फ्रॉम दिस व्हाट हैपेंड, टू पीपल केम इनटू द पिक्चर. फार्मर मेट द होलसेलर और उन लोग ने बोला कि बॉस 3 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद मैं तेरे को क्रॉप बेचूंगा. All that done, मैं तेरे से क्रॉप खरीदूंगा. Now this is where from this conversation they have started defining the risk, defining the exposure कि उन लोगों को वो चीज कितने में पड़ेगी. So here to start with, what did he say? कि बॉस I agree on 80 rupees. क्या आप 80 रुपए में मेरे से माल खरीदोगे? वो बोलता है डन. भाव मार्केट में कुछ भी होगा आपको मेरे को 80 देना पड़ेगा. होलसेलर ने वापस कंफर्म किया भाव मार्केट में कुछ भी होगा आपको मेरे को 80 में देना पड़ेगा. आर यू रेडी? मैं बोला यस. वो बोलते आर यू रेडी? मैं बोला यस. अभी इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया. नाउ व्हाट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट नोन एज? दिस इज वेयर द डेरिवेटिव स्टार्टेड फ्रॉम. Okay, this is the first product of derivative which is actually known as guys forward contract. I'll give you everything in writing once we finish the explanation. Forward contract. This is how the forward contract actually started. Now out of the forward contract your first derivative instrument. Now what is in this derivative instrument? What is derivative? I'll come back to that picture. Okay, or maybe let me explain that first if you want. सर डेरिवेटिव एग्जैक्टली क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट? चलो इन लोगों ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया. इन लोगों ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया? व्हाट डिड दे डू इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? मेरे को एक पेन बिन दे. नाउ इन लोगों ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट लिख दिया कि भाई मैं 80 रुपए किलो में आई विल बाय एंड परचेस. ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट. ये हो गया उन लोगों का एग्रीमेंट. क्या हो गया एग्रीमेंट में? दे हैव बोथ साइन दैट दे विल बाय, वन विल बाय एंड वन विल सेल. एट व्हाट प्राइस गाइस? वन विल बाय एंड वन विल सेल एट व्हाट प्राइस? 80 रुपीज. नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इज दिस द क्रॉप? इज दिस द क्रॉप? नो. आर दे गोइंग टू बाय एंड सेल दिस पेपर और क्रॉप? Crop. But what is derivative? Derivative is this paper. This paper is known as derivative. So if I were to define derivative for all of you guys, what is derivative? Derivative is a financial instrument. This paper is a derivative. Derivative is a financial instrument which derives its value from another financial instrument. My another instrument is what? Your crop. उसके ऊपर से ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट आया है. So derivative is a financial instrument which derives its value from another financial instrument, and that another financial instrument is known as underlying asset. But right now I want to tell you that we both have agreed to sign this particular paper. ये क्लियर हो गया? चलो इसमें थोड़ा हम लोग गेम खेलते हैं. ठीक है, फार्मर में मैं हो गया धवल सर, ओके, और होलसेलर में कृतार्थ हो गया. ठीक है, उसको धंधा नहीं करना, छोड़ो, अपने को पारस को रखो.
नाउ अब दोस्तों होलसेलर में पारस आ गया. नाउ हाउ विल द बिजनेस हैपन? 3 महीने के बाद वी बोथ हैव एग्रीड. 3 महीने के बाद वी बोथ हैव एग्रीड to buy. Let us further define. We both have agreed to buy 1000 kilo. We both have agreed to buy how many kilos, guys? 1000 kilo at the rate of 80. So Dhawal will sell at the rate of 80 and Paras will buy at the rate of 80. This is the forward contract entered. This is your one of the major derivative instrument. Though those who have done forex, they know a little bit about the forward contract, but otherwise this is it. Don't worry. ये समझा आप लोगों को? ये समझा? अब क्या होगा दोस्तों? लेट्स गो आफ्टर 3 मंथ. आफ्टर 3 months अब मजा आए. अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं दोस्तों. व्हाट कैन बी द सिनेरियो? लेट्स स्टार्ट. प्राइस 90 हो गया, प्राइस 100 हो गया, प्राइस 70 हो गया, प्राइस 60 हो गया. नाउ लेट्स से these are the price which are actually prevailing in the forward market. These are the price which are actually prevailing in the forward market. Are you all there with me? अब सबसे पहले अगर प्राइस 90 हो गया, I want to ask you all this simple question. Paras will go to Dhawal or Dhawal will go to Paras? Sir will go to, ऐसा sir बोला है, Dhawal बोलेगा तो अच्छा लगेगा. Now, sir will go to Paras or Paras will go to sir? Paras will dance and go, bro, लाओ खेडूत, दे मेरे को माल दे. मैंने बोला कि सर बट अभी मार्केट में we have agreed upon this, guys. We have agreed upon this and we have signed this. And since we have signed this, I want you to give me money. I want you to give me the crop. कितना crop he will give, guys? 1000 kilo. At what price will he give me? He will have to pay 80,000. और ये तुरंत पारस मार्केट में बेच देगा. And Paras is super happy here. Paras got how much, guys? Because of this instrument only. Only because of this instrument. First thing first, only because of this instrument Paras have made a profit of 10,000. ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, ये पेपर इसलिए मैंने स्पेशल कटिंग करके लेके आया हूं तुम लोगों को समझाने के लिए कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, लिटरली ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होता ना, तो उसको 10,000 का लॉस होता. मतलब 10,000 ही हैव अर्न ओनली आउट ऑफ दिस. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? हु हैव मेड लॉस, गाइस? हियर सर हैव मेड लॉस आउट ऑफ इट. फेयर इनफ एवरीबॉडी? प्रांजल, डोंट फील बैड, आई मेक प्रॉफिट. नीचे की 2 ट्रांजैक्शन है ना. नाउ so now let's move forward in my next round. Again, if it is 100, who is making profit? Paras is making profit. Paras 20,000 कमा रहा है और मैं 20,000 का नुकसान कर रहा हूं दोस्तों. और यहां पर मेरे साथ मुंबई इंडियन होते हुए, and you're just not feeling good, guys. And but finally one day will come and suppose it turn out to be 70. Now if it turn out to be 70, तो मार्केट में अंजलि वो चीज 70,000 में वो उठा सकता था, बट क्योंकि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं पारस के पास वाला पारस जोयू चलो लाओ. पारस को बोला, बॉस you will have to pay me 80. Now this time only because I have entered into this contract, I made 10,000 and he made 10,000 का loss. Are you all there with me? Everybody is there with me? जब 60 हो गया तब मैं वापस पारस के बाद आया. पारस किधर है? तो पारस घर पे मिला ही नहीं मेरे को. छत पे गया, छत पे भी नहीं. बाहर गया, फोन किया, उठा नहीं रहा है. वापस फोन किया, ब्लॉक कर दिया है. फाइनली ऑर्डर होल्ड. मेरा पारस बोला, कौन हो आप? मेरा भाई, यू नो पीस. बोला, शो मी. सॉरी, व्हाट? आई डोंट नो यू. हो गया अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. पारस ने ये देखा, मैंने उसको बोला, देख ब्रो तूने साइन किया. बोला, बताओ. वाओ, यस माय साइन. और फाड़ दिया. और अब दोस्तों ये फाड़ दिया. प्रांजल, नाउ यू कैन बी अपसेट फॉर दिस. अब मैं जाऊं किधर? आप सोचो. अब ऐसे सिचुएशन में किधर जाएंगे? What? And same thing could have happened with him also. Paras would have come to me. Paras बोलता है कि सर देखो मेरे को आप 80 में दे दो. मतलब भाई तेरे को 80 में क्यों दूं? मार्केट में 100 में जा रहा है. चल हट, तेरे को 100 में ही दूंगा. सर आपने मेरे को प्रॉमिस किया. चल हट. सर मैं कोर्ट में जाऊंगा. जाना, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? आई एम यूज्ड टू. नाउ आई मीन हेलो, ए शट अप रे. My point is, doesn't make difference to me. Now this risk is always there. ये रिस्क है ना बच्चों,
ये रिस्क हमेशा है, और क्योंकि ये रिस्क है ना, तो अब लोगों का एक दूसरे के ऊपर से भरोसा उठ गए ब्रो, एंड दैट इज वेयर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट गोज अवे। बस आपके जीवन में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इतना ही था, ठीक है। अब इसको छोड़कर अब नया इंस्ट्रूमेंट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बट ऑल सेड एंड डन, let me come away with another instrument. Now this is your future contract. Now guys, future is something very new. Lot of people make good profit and loss in future only because they don't know the product. So my request is, please pay a lot of attention. I want to make sure at least when we go out today in break, before break, we should be all aware about what this market is and how does it operate. लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर। पहली बात, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चालू कहाँ से हुआ? चालू ये हुआ कि धंधे में रिस्क है, धंधे में अनसर्टेनिटी है, तो उस रिस्क को डिफाइन करने के लिए, उस अनसर्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए हमेशा मार्केट में दो लोग ऐसे होंगे, एक को लगेगा कि भाव बढ़ने वाला है और दूसरे को लगेगा कि भाव कम होने वाला है। नाउ दे बोथ विल कम एंड मीट ईच अदर। व्हेन दे बोथ विल कम एंड मीट ईच अदर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे विल नाउ स्टार्ट डिफाइनिंग दैट हाउ मच at what price do we both agree upon. Who is benefiting out of this agreement? Ideally both. Who will make loss out of this agreement? The one whose prediction goes wrong. The one whose prediction goes wrong, he will make loss out of it. Did you understand this much? Now comes the forward contract. Forward contract was the first thing which came. But forward contract में हुआ क्या दोस्तों? Forward contract में धीरे कोई भी भाग जाएगा यार, और अगर कोई भी भागने वाला है तो वो रिस्क रहेगा। We can call it as counterparty risk. Now what is counterparty risk? Counterparty risk is the opposite person have defaulted. You cannot do anything about it. You want to sue him, sue him. But this is have happened. This is the loss which has done. This is closed. And now comes the next question. So here comes your future market. Now what is future market, guys? With all understanding, I want you guys to understand one thing, please. Future is the forward contract. When I'm saying it's a future market, technically it is the forward contract only. But यहां पर बहुत ज्यादा सेफ्टी है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, कंपैरेटिवली ये बहुत ही ज्यादा सेफ है। क्यों सेफ है, कैसे सेफ है, वो हम डिस्कस करते हैं। आर यू ऑल रेडी गाइस? एटलीस्ट डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड राइट नाउ? एवरीवन, पीपल एट होम गाइस, देयर क्लीन? चलो, हाँ, दिनेश ने 4-5 आंसर भी लिख दिए इतने में। नाइस दिनेश। Now, okay, done. Let's continue. Oi. So now let's talk about the future contract. Now what is future contract? Future contract में वापस, I repeat, future contract में guys, understand one thing. Again, these two people are going to meet. Who two people are going to meet? Your Dhawal sir will be there and your Paras will be there. अब दोनों को assurance चाहिए कि 80 में काम होगा कि नहीं, बट दोनों एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट विल दे डू इज दे विल मीट द मार्केट। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? व्हाट इज दिस? बीच में क्या आ गया बच्चों? ये छोटा सा BSc का सिंबल बनाया ब्रो मैंने। नाउ दे बोथ विल गो टू द मार्केट। नाउ व्हाट विल Dhawal sir say? Dhawal sir will go to exchange. Now this is your Bombay Stock Exchange, or right now let me just keep it simple, exchange. Now both will do what? Both will go to exchange. एंड एक्सचेंज में जाकर वो लोग बोलेंगे कि भाई साहब मेरे को है ना ये क्रॉप बेचने का है। कितने में बेचने का है? मेरे को बोलता है कि मेरे को ये 80 रुपए में बेचने का है। सिमिलरली वहां से पारस भी आएगा, पारस बोलेगा मेरे को क्रॉप खरीदने का है। बोलेगा कितने में खरीदने का है? तो बोलेगा मेरे को 80 में खरीदने का है। तो एक्सचेंज बोलेगा डन, आप लोग एक काम करो, आप लोग ये जो भी सब्जी है, ओके, जो भी आपका क्रॉप है वो मेरे बाजू में इधर आगे क्राफर मार्केट है, उधर जाके बेचो, बट तुम्हारा भाव मैं नक्की करके देता हूं। Your rates I will decide. Now how do I decide? Now that's exact place where another derivative product is been introduced. This is known as futures. This is known as futures. Now what is this instrument? Again same theory. तो यहां पर अभी के लिए तो फिलहाल 80 लिख रहा हूं, बट ये कैसे ट्रेड होगा प्लीज समझने की कोशिश करो। जो भी हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में देखा, जो भी हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में देखा, वो सेम चीज यहां पर होने वाला है। सेम 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 एवरीथिंग सेम, बट ओनली डिफरेंस इज व्हाट? ओनली डिफरेंस इज व्हाट? यहां पर सपोज
हम लोगों ने एग्री किया था कि भाई मेरे पास 1000 किलो नहीं, मेरे पास 1100 किलो है और मेरे को ये प्राइस में चाहिए। अभी ये क्या बोलेगा पता है, फॉर एक्सचेंज उन लोगों को बोलेगा कि प्लीज आप हमारा रूल समझो। रूल नंबर 1, आप जब भी हमारे पास से खरीदोगे आपको 500 किलो के मल्टीपल में खरीदना है। कितने किलो के मल्टीपल में खरीदना है? 500 किलो के मल्टीपल में। अगेन आई एम जस्ट मेकिंग यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ दिस एंटायर थिंग हैज बीन ड्राफ्टेड। ओके, आप जब भी हमसे खरीदोगे आपको कितने किलो के मल्टीपल में खरीदना है? 500। मतलब मेरे पास 1100 में है तो आप 2 कॉन्ट्रैक्ट खरीदो। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, दिस इज योर 1 कॉन्ट्रैक्ट। योर 1 कॉन्ट्रैक्ट इज 500 kg। आई गिव यू 80 रुपीज का प्राइस, नो प्रॉब्लम। आई गिव यू 80 रुपीज का प्राइस। सो 500 इंटू 80 इज हाउ मच गाइस? 40,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको चाहिए यू बाय 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, you want you buy 3 contracts, so it would be 500, 1000, 1500, 2000, but you will have to buy only in that. Plus what do you want? बोला आज से 3 महीने बाद, हम लोग कौन से मंथ में बच्चों अभी? अप्रैल। सो अप्रैल से मई, जून, जुलाई, मतलब आज से 3 महीने बाद यानी कि 28 अप्रैल, 28 जुलाई को मेरे को चाहिए। तो वो बोलता है एक काम करो, मैं आपको दे रहा हूं जुलाई क्रॉप FUT। What is it? July crop FUT. FUT is what beta? Futures. Now what is July crop futures? सबसे पहले जब भी आप फ्यूचर मार्केट में जाओगे, आपको हमेशा 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। 3, कोई भी एक अंडरलाइन एसेट। सबसे पहले व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कम ऑन जॉइन इन गाइस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट which derive its entire value from where? Another financial instrument. It derive its value from another financial instrument. Now this instrument from which? It can be anything. It can be your commodity, it can be your bonds, it can be your equities, it can be your index, market index. So in that case, this financial instrument is your derivative product. If this is your derivative, I want you to understand this is your underlying asset. Now whenever you are going to go buy, you will always have 3 products for any future market beta. There is 1 current month, next month, and far. So these 3 futures when you are going to get, what is this? At any given point of time आपको ये 3 के अलावा मिलना ही नहीं है मार्केट में माल। I repeat, आपको ये 3 के अलावा कभी भी मार्केट में नहीं मिलेगा। यानी कि अगर अभी आज आप कोई भी प्रोडक्ट का फ्यूचर्स लेने जाते हो, बीट अदानी का फ्यूचर, बीट सेंसेक्स फ्यूचर, बीट निफ्टी फ्यूचर्स, you are going to get 3 futures. What do you call it as? Current month, near month or next month, and far month. Now what is it? अभी ये तो अप्रैल खत्म हो गया, so ideally we should not take example of April. Say for example अगर आप 1 मई में गए तो आपको मिलेगा May futures, May FUT, June FUT and July FUT. Again, are they shares? No, they are just a piece of paper. They are just a contract which you are entering into with some party which you don't know. जैसे कि यहां पर कौन कौन डील कर रहा था? धवल सर और पारस। बट जब ये सेंसेक्स में जाएगा, जब ये चीज सेंसेक्स में जाएगी तो 1000 धवल सर होंगे ये साइड पर और 1000 पारस होंगे वो साइड पर। आई डोंट केयर, आई हैव ओनली 1 person टू आस्क फॉर। हु इज दैट पर्सन? एक्सचेंज इज गोइंग टू बी दैट पर्सन। आई एम जस्ट गोइंग टू गो एंड आस्क एक्सचेंज के बॉस, एक्सचेंज यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब चला गया तो बोलता टेंशन मत लो, मैं लूंगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तेजल इधर पढ़, वो बाद में पढ़ते हैं, दोनों पढ़े। ओके, नाउ सो योर who is taking the responsibility? Exchange is taking the responsibility. How does this exactly work? We both have decided to enter. एक सेकेंड, तुम लोग को डेरिवेटिव समझा थोड़ा बहुत? अगेन दिस इज गोइंग टू कम, आई विल कीप डिराइविंग। 1, 2, 3 एग्जांपल ले लूंगा ना, तुम लोगों को ये वाला डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। दिस डेफिनेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस, वेरी इजीली प्लॉटेड। व्हाट इज डेरिवेटिव? ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट which derives, that's why it's termed as derivative also, which derive its value, its price from another financial instrument. It can be anything.
बट उसका वैल्यू ये अपने आप में, इफ आई ब्रेक दिस चेन ना, देन वो कुछ भी नहीं, वो हवा में है, वो उड़ जाएगा, खत्म. देयर इज नो वैल्यू फॉर इट. ऑन इट्स ओन ही स्टैंड्स नथिंग. Whatever he has, it is derived from some another asset. We will come back there in some time. Let's continue with our example. अब दोस्तों यहां पर क्या हुआ, हम लोग ने जुलाई फ्यूचर्स में एंटर किया. अब जुलाई फ्यूचर में एंटर किया, मेरे को 3 महीने के बाद चाहिए था और 3 महीने के बाद पैसा आ गया. अब दोस्तों 3 महीने के बाद, से फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 2 लॉट खरीदे. कितने लॉट खरीदे? 2 लॉट. मैंने 2 लॉट बेचे. नाउ व्हाट वाज माय कमिटमेंट? What was my commitment? That I will sell at the rate 80. And what was his commitment? So this was Dhawal sir's commitment. And what was Paar's commitment? He will buy at the rate 80. ये कब होने वाला था? जुलाई में होने वाला था. अब दोस्तों जैसे ही जुलाई मंथ आया, क्रॉप का प्राइस हो गया 90. Who would like to run away? हाँ, Dhawal sir would want to run away. Why would I want to run away? क्योंकि ये प्रोडक्ट को मैं मार्केट में कितने में बेच सकता हूँ? 90 में बेच सकता हूँ. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पारस विल कम हम्पिंग ऑन द एक्सचेंज कि भाई लाओ मेरे को पैसा दो. बट एक चीज यहां पर, क्यों ये डेरिवेटिव आया, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो. धवल को इसमें कितना नुकसान हुआ और पारस को इसमें कितना फायदा हुआ. 2 कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए थे हम लोगों ने. So my loss would be how much, guys? Come on everybody. 80 minus 90, 10 रुपये. एक लॉट कितने का था? 500 किलो का. और ऐसे हम लोग ने कितने लॉट लिए थे? 2 लॉट. Come on, 80 minus 90. Quick in your calculus. 10 into कितने का लॉस हो गया? 10,000 का. Now let's imagine, moment I realize I have made a loss of 10,000. What will I do? I will obviously run away. मैं मार्केट को बोलूंगा ब्रो कौन आप. और जब आप भाग जाओगे ना बच्चों, मार्केट विल नॉट इवन बॉदर. मार्केट बोले चले गए, एक दिन फोन किया, पता चला नहीं है, ऑब्वियसली आपका डील ब्रोकर से होगा. मार्केट बोलेगा मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता. क्यों फर्क नहीं पड़ता है? कि आप लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में यू कैन नॉट एंटर विद द मार्केट अनलेस यू डिपॉजिट विद देम इनिशियल मार्जिन. Unless you deposit with them what beta? Initial margin, which is going to be 10 to 20% of your contract size. Sometimes 30% also, depending upon the volatility. So now let's take a 25% in our case. So अपना original contract कितने का था? 500 kg into 2 total 1000 kg 80. तो 80,000 का 25% ले लो. 80,000 का 25% ले लो बेटा, 20,000. ये 20,000 कौन जमा कराएगा? ये 20,000 धवल सर भी जमा कराएंगे एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. बेटा, वन मोर पर्सन विल डू इट. पारस विल ऑल्सो कम एंड पारस भी उसको बोलेगा कि आप 20,000 ले लो. अब ये डिपॉजिट पड़ा हुआ है किसके पास? एक्सचेंज के पास. सर अगर भाव बहुत बढ़ गया तो हर रोज जब भी आपका भाव चेंज होगा, एवरी डे वेन एवर योर प्राइस विल कीप चेंजिंग, फ्लक्चुएटिंग, मार्केट आपसे और पैसा मंगाते जाएगा. 15-20 मिनट के बाद, दैट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू लर्न टुडे. मार्क टू मार्केट कॉन्सेप्ट. What is mark to market concept? I'll explain. Let me come there. But right now, first thing, forward contract was the original game. Why did we back out from the forward contract and we entered into the future contract? Because first thing, what is the first thing in the future contract? Extreme security. Who will take the safety, guys? Come on. Who will take the responsibility now? Exchange will take the responsibility. Who will take the responsibility? Exchange. It is purely exchange responsibility to make sure that transaction happens. But exchange के rules है. Rule number 1. आप quantity कितनी ले सकते हो? बोलो. Any quantity? No. You are not allowed to take any quantity. You will have to compulsorily take in the multiple of lot size only. Our next example will take one Reliance and then we'll take one Sensex example, so you will get it completely. इधर ये समझा आप लोगों को? पक्का? जाओ मैं आगे. क्वांटिटी ये. डिलीवरी कब होगा बच्चों? At your wish. डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट का डिलीवरी, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का डिलीवरी है ना, हैज टू हैपन ऑन द एक्सपायरी डेट ओनली. ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का डिलीवरी विल कंपल्सरीली हैपन ओनली ऑन द
एक्सपायरी डे. आर यू ऑल गेटिंग इट? एवरीबडी इज गेटिंग इट. बट बेटा ये हम लोग ने एंटर किया इनटू दिस इंस्ट्रूमेंट. अगर मेरे को लग रहा है 3 दिन के बाद, अब देखो मजा आएगा. एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन. 3 दिन के बाद मैंने एंटर किया, 3 दिन में नहीं 15 दिन. अपन ने कब एंटर किया? लेट्स टेक 1st May. एवरीबडी इज देयर विथ मी. 1st May Dhawal sir intend to sell at what price? Only look from my perspective. Dhawal sir intend to sell at what price? At the rate of 80. Paras is very happy. Paras is going to buy at what price? Paras is going to buy at 80. अब दोस्तों अचानक से there was new MSP announced by the government. MSP, you know MSP? What is MSP? Minimum support price. So now who's announced? Government have announced. तो मारवी अभी इस प्रोडक्ट का भाव 15 ही दिन में 85 हो गया. अब जैसे ही 15 दिन में 85 हो गया तो आई एम स्कैर्ड नाउ कि भाई ये तो भाव बढ़ रहा है. तो मेरे को तो टेंशन आ गया. अब दोस्तों बट आई एम स्टिल सेफ क्योंकि मेरा ट्रांजैक्शन कब खत्म होने वाला है? जुलाई में. तो आई कैन होल्ड दिस प्रॉपर्टी राइट नाउ विथ मी. नो प्रॉब्लम धवल, हम होंगे कामयाब एक दिन. वी विल वेट फॉर द लास्ट डे. जब भी होगा तब जो होगा वो देखेंगे. एक ही है. बट ऐसे इंडियन इन्वेस्टर्स नहीं होते. दे स्टार्ट पैनिकिंग. आई स्टार्टेड पैनिकिंग. आई कॉल्ड प्रांजल. प्रांजल, व्हाट डू यू फील? यू क्लोज्ड योर आइज एंड यू हैव इमेजिन द प्राइस. कैन यू प्लीज टेल मी नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी? बोलती भाई मेरे को लग रहा है बढ़ रहा है. ओके, नो थैंक यू प्रांजल. नाउ दिस इज गोइंग टू गो अप. तो इमीडिएटली आई वेंट 15th May को. 15th May को गाइस, कम ऑन हेल्प मी इन द पार्टी नाउ. हाउ डज दिस एक्चुअली हैपेंस? 15th May को ऑलरेडी 85 हो गया है. अब मेरे को टेंशन है. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कार्तिक फील के भाव इससे कम होगा. ये जितना बढ़ना था अभी बढ़ गया. तो कार्तिक सेज दैट बॉस आई वांट टू एंटर इनटू इट. आर यू गेटिंग दिस क्लियरली? सो अब मैं क्या करूंगा, ये जब 85 होगा मैं इसको 85 में क्लोज कर दूंगा. दोस्तों मैंने ये ओरिजिनली आई हैव सोल्ड दिस फॉर 80. हेलो, आई हैव सोल्ड दिस फॉर 80. अब मेरे को अगर रिवर्स करना हो ना ट्रांजैक्शन, इफ आई हैव टू रिवर्स, आई विल हैव टू बाय. So I've sold this at 80. Now look at Dhawal sir's position. Dhawal sir will buy at 85. So did I make profit or loss? Huh? I made a loss. But now Karthik believes कि ये 85 मैक्सिमम है, अभी इससे नीचे ही जाएगा. तो कार्तिक ने क्या किया, उधर नया एक एंट्री आ गया. कार्तिक ने मेरे पास से ले लिया. ले ले कार्तिक. कार्तिक बच्चों आप इमेजिन करो, कार्तिक ने ले लिया इधर. नाउ कार्तिक बॉट एट 85. अब कार्तिक ने 85 में बाय किया. 15th June, एक महीना हो गया, अब ये प्राइस 90 हो गया है. नाउ कार्तिक इज ऑल्सो स्कैर्ड कि बहुत दिस विल गो अवे. सो कार्तिक वांट टू एग्जिट, बट आई डोंट वांट टू मेक मोर लॉस नाउ. जो हुआ ठीक. सो नाउ कार्तिक विल इमीडिएटली सेल इट टू हुम? मन वांट टू बाय. मन को लगता है कि नहीं 90 इज द मैक्स. अब 90 से नहीं होगा. सो कार्तिक विल डू व्हाट? कार्तिक विल buy at 90 and who will sell at 90? मन. तो अभी वो चला गया किसके पास? मन के पास चला. Are you understanding this? Eventually last day पर, कौन से last day पर? July FUT है. So all your contract usually expires. Anybody aware of this fact? All your contract usually expires on the last Thursday of the month. I repeat, all your contract has to expire on last Thursday of the month. So whichever the month it is, उसके लास्ट थर्सडे पर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा. सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपायर? एक्सपायर का मतलब है अगर आपने ओरिजिनली बेचा था तो आज आपको जो भी भाव होगा उसमें आपको खरीदना पड़ेगा. अगर आपने ओरिजिनली खरीदा था तो आज जो भी भाव है उस पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों? बेचना पड़ेगा. यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? एवरीबडी श्योर? कैन वी गो अहेड? पक्का? So now if I want to just come to a conclusion, do you actually understand what the derivative product is? पक्का? एक छोटा सा गेम खेले और हाँ चलो. I am taking one more small game, small example. You please help me with that example. Okay? Everybody is there? पक्का? Let's start. Say for example, there are always two types of persons. One believes that price will go up. Other believes that price will go
डाउन। चल नील बोल किसका फ्यूचर उठा है, तू बोल, तो धंधे वाला है ना। बैंक निफ्टी सेकेंड एग्जाम्पल में लेते हैं, पहले उनको निफ्टी भी समझाना पड़ेगा। कोई अभी एक इक्विटी बोल, रिलायंस। चलो फेवरेट, आई डोंट नो व्हाई एवरी टाइम एवरी स्टूडेंट टेक रिलायंस ओनली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलायंस। Now what is happening? Please try to understand what is happening, please. And everybody will participate, please. सब लोग कैलकुलेट लेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग 2-3 जन को इसमें इनवाइट भी करेंगे एंड लेट्स फिगर आउट हाउ डज दिस मार्केट वर्क्स। आज का तारीख हम लोग ओनली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेकिंग फर्स्ट में, क्योंकि वैसे भी ये मंथ खत्म हो गया, पर ये मंथ हो भी जाएगा ना, आज क्या है, संडे है। हाँ बस गया, थर्सडे तो वैसे भी गया इस मंथ का लास्ट, 20, 30 खत्म। तो वैसे चलो हम 28 अप्रैल लेते हैं, अपने को कोई नुकसान नहीं। दिस इज 28 अप्रैल, ओके। Today's spot price, what do you mean by the word spot? मतलब अगर आज आप स्पॉट में खरीदने गए तो आपको मिलेगा शेयर, रिलायंस का एक शेयर कितने में, फटाफट कोई भी अमाउंट बोल दो बेटा, कौन सा खरीद रहे हैं हम लोग, हाँ 2000, चलो लेट्स टेक 2000, ओके। एंड फ्यूचर मार्केट, इट डिपेंड आपको कौन सा फ्यूचर खरीदना है, what future you want to buy, it depends. Say for example, there are how many futures available now? Now there are how many futures available? Come on. May future, May FUT. How would this look in your market? ऐसे RIL May future FUT. वैसे ही RIL June FUT and RIL July FUT. Let us not be very this thing. हम लोग एक महीने वाले में डील करते हैं, चलो। लेट्स टॉक अबाउट मे एफयूटी। अब मे एफयूटी है ना बच्चों, आज आपका प्राइस कितना है बेटा, 2000। मे एफयूटी कब एक्सपायर होगा, लास्ट थर्सडे ऑफ द मे। देखो ना कैल्सी पे, देखो फटाफट, कैल्सी पे क्या, कैलेंडर में देखो, सॉरी कितना कैल्सी होगा, मेरे पास भी है कैलेंडर, रुको खुल गया, 30th। सो दिस विल एक्सपायर ऑन 30th मे। तो अभी हमारे पास कितना दिन है, हिमांशी मेरे को बोल प्लीज, नो हंस बेटा, धंधे पे ना। रिलायंस में फ्यूचर, लेट्स पार्टिसिपेट गाइस, एवरीबॉडी जॉइन इन। नाउ दिस इज एक्सपायरिंग ऑन विच डेट, दिस इज एक्सपायरिंग ऑन 30th जून। लेट्स प्ले दिस गेम, ओके। अभी इसका भाव क्या चल रहा होगा, 30th मे, सॉरी माय बैड। अभी इसका रेट क्या चल रहा होगा, व्हाट वुड बी दिस फ्यूचर अगेन। इज दिस रिलायंस शेयर, यू टेल मी गाइस, इज दिस रिलायंस शेयर, एवरीबॉडी टेल मी, इज दिस रिलायंस शेयर? नो, दिस इज व्हाट, रिलायंस फ्यूचर, इट इज जस्ट अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट। बट ये जो भी है, नाउ इफ दिस इज द फ्यूचर, इफ दिस 2000 become 5000, what is this, spot, this is share. If this 2000 become 5000, suppose this was 2050, this will become 5050. If this 2000, if this 5000 become 1000, so ये भी गिर के कितना हो जाएगा, अराउंड 1020, 1020. What is this? This is one share. This is what beta? One share. And this is one future share. So this is one instrument which you cannot buy in one unit. You will have to buy in the lot. But my question is, इसका पूरा वैल्यू कहां से डिराइव हो रहा है बच्चों, शेयर से। तो जैसे ही शेयर का मूवमेंट होगा, जैसे ही शेयर मूवमेंट होगा, इनफैक्ट आई कैन शो यू दिस, कैन यू सी दिस शेडो एवरीवन, इफ एट ऑल यू कैन सी दिस शेडो, दिस शेडो इज डेरिवेटिव, this shadow is derivative, it has derived its value from this hand. So if the hand goes up, the shadow will also go up, the hand goes down, the shadow will also go down. Are you getting it? Now let's start the game, guys. You want to deal in futures? Hey, are you all there guys? Hello, oi, I can't hear you, come one more time. Are you all there? फटाफट कैलसी लेना, ओके। अभी तुम लोग घर से निकले तुम लोग 1 लाख रुपया लेकर, कितना रुपया लेकर, 1 लाख रुपया लेकर। अभी 3-4 चीजें जो हम लोग इसमें क्लियर करेंगे, घर वाले सारी बच्चे लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर तुम लोग 1 लाख रुपया लेके निकले तो इफ यू टुक 1 लाख रुपीज, टेल मी वन थिंग, यू हैड एन ऑप्शन, यू कुड हैव गॉन टू बाय रिलायंस शेयर एंड यू कुड हैव आल्सो गॉन टू बाय रिलायंस फ्यूचर। You wanted to deal only for 1 month. आपको लगता है 1 मंथ में ये प्राइस बढ़ने वाला है, आपको क्या लगता है बच्चों, 1 मंथ में ये प्राइस बढ़ने वाला है। एवरीबडी गेट इट, वी आर जस्ट गेटिंग द गेम। नाउ प्रांजल, विद 1 लाख हाउ मेनी शेयर्स कैन वी बाय बेटा, हाउ मेनी शेयर्स कैन वी बाय, कम ऑन एवरीबडी क्विक, ओनली 50 शेयर्स। आपने कितना शेयर्स खरीदा बच्चों,
सिर्फ 50 शेयर. हम लोग स्पॉट मार्केट में, इफ यू वांट आई कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस मार्केट एज कैश मार्केट. प्लीज पार्टिसिपेट क्योंकि अब मजा आएगा तुम लोगों. नाउ यू आर एक्चुअली डीलिंग विद इट. इट इज योर 1 lakh rupees. You bought a share of 2000, 50 shares. Now this 50 shares will be immediately transferred in whose name? आपके नाम पे आएगा. अगर आपने 1 लाख दिया, आपके हाथ में कितना है बेटा? 50 शेयर. आपके हाथ में 50 शेयर्स आ गया. अब आपके हाथ में शेयर्स आ गया, मतलब आप लोग कौन हो? कंपनी के शेयर होल्डर्स हो. कैन आई ऑल्सो यूज द वर्ड दैट यू आर द ओनर्स ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी टू दैट एक्सटेंट? टू दैट एक्सटेंट एवरीबडी एकदम क्लियर. ओनरशिप इज विथ यू, शेयर्स आर विथ यू. एक्चुअल डिलीवरी आपके घर में ऐसा पेपर नहीं आएगा डेरिवेटिव का. आपके डीमैट अकाउंट में दिखेगा आपको कि ये शेयर्स के मालिक आप हो. फेयर इनफ. अब 1 महीने बाद 28 मई को प्राइस 2100 हो गया. यू आर वांटिंग इट टू गो अप. इट हैव एक्चुअली गॉन अप. कितने से प्राइस बढ़ गया? 100 रुपए से बढ़ गया. डिड यू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट? यस और नो? यू वांट टू एग्जिट नाउ. यू वांट टू एग्जिट नाउ. यू मेड प्रॉफिट आउट ऑफ इट. कितना प्रॉफिट आप लोगों को हुआ? फटाफट. दिस इज योर कैश मार्केट. वी आर टॉकिंग अबाउट कैश मार्केट. कम ऑन. कितना प्रॉफिट हुआ? 5000 का. कैसे हुआ? 2000 माइनस 2100 इंटू लाउडर 50 इज इक्वल टू 5000 का प्रॉफिट हो गया. आपको ये 5000 का प्रॉफिट कितना पैसा इन्वेस्ट करके हुआ? 1 लाख रुपया डाल के विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख. एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? कह रहे से ये तो हम लोगों को पता ही था ऐसा होता है. अब यही चीज फ्यूचर में कैसे होगी ये देखिए. पहली बात, आपका फ्यूचर इज नॉट द शेयर. ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका वैल्यू डिराइव हो रहा है ऑब्वियसली फ्रॉम द शेयर. नाउ फटाफट लेट अस से देयर इज अ प्राइस गैप ऑफ, सी नॉर्मली है ना, डिपेंड करता है. आज अगर हम लोग 25 अप्रैल को होते हैं, जो हमारा एक्सपायर हो रहा है 2 दिन में ही, तो मेरा स्पॉट का प्राइस और फ्यूचर का प्राइस बहुत सेम दिखेगा आपको. बट अगर मैं आज 1 महीने दूर हूं तो आई वॉन्ट पीपल टू एक्सप्लेन. कम ऑन. मे फ्यूचर कितने का होगा? अराउंड मेरे को बोलो ऐसे ही. हाँ 20-30 रुपया ऊपर. से फॉर एग्जाम्पल 2020. जून फ्यूचर कितना होगा बेटा? जून फ्यूचर 2050. जुलाई फ्यूचर वुड बी इवन मोर, 2090, समथिंग लाइक दैट, और 2100, व्हाटएवर इट इज. आर यू गेटिंग इट गाइस? आपको ये समझा? अब गेम स्टार्ट करते हैं. चलो. द रूल नंबर 1. What is the rule number 1? Whenever you enter into the future market, the best part is you don't have to pay. Very important part, you don't have to pay what? Full value of the share. That's the first rule. आपको पूरा पैसा देना ही नहीं है. आपको कितना पैसा देना है? आपको सिर्फ 10 से 20%, only 10 to 20% of the total value you have to pay. I repeat, only 10 to 20% value you have to pay. Let us say that Reliance है, ज्यादा सिक्योर है, इसके लिए ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं होगी. ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं होगी तो मार्जिन ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा. एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? यस, श्योर. आई होप एवरीबडी इज गेटिंग इट. क्लियर खुशी? सो बेटा अब कितना परसेंट लेना है? 10% मार्जिन लेते हैं. अगर 10% मार्जिन ले रहा हूं, 2000 का शेयर है. ओके 2000 का शेयर है. से फॉर एग्जाम्पल एक शेयर का मार्जिन हो गया 10%, 200 रुपीज. So if you want to enter into this product, you will have to pay 200 per share. Lot size decide करो फटाफट. हाँ lot size कितना? 100 shares. 1000 कर दे. चलो नहीं ज्यादा हो जाए. 100 shares. So whenever you will have to enter in 100 shares. आप 1-2 यूनिट ले ही नहीं सकते. You want to buy 5 units? No, you can't. You will have to enter into the lot. Now let's get into the game. गेम नंबर 1. व्हाट इज द गेम नंबर 1? बेटा 200 रुपए का इनिशियल मार्जिन है. 200 रुपए का इनिशियल मार्जिन है एक शेयर का, और आपको कंपलसरी 100 शेयर्स लेना ही पड़ेगा. सो 200 इंटू 100 कितना हो गया? लाउडर. 20,000 इज योर इनिशियल मार्जिन. 20,000 इज योर इनिशियल मार्जिन. एवरी स्टूडेंट सिटिंग हियर अंडरस्टैंड इनिशियल मार्जिन? श्योर एवरीवन? योर न्यू कमर्स? पक्का बेटा? You understood initial margin क्या होता है? मैडम what's your good name? लब्धि? भूमिका? Oh, everybody is getting this? पक्का everyone?
श्योर 200 इज 10% ऑफ द शेयर प्राइस, इनिशियल मार्जिन इज 10%, या तो उन लोग ने डिफाइन करेगा, नॉर्मली एक्सचेंज ही डिफाइन करता है उसका भी ऐसे 10%, तो मैंने बोला तेरे को बेटा, वो लोग मार्केट ही डिफाइन करता है, कुछ कुछ सम्स में हम लोगों को बोलेंगे, उसके फॉर्मुलाज में सिखाऊंगा कैसे डिराइव होता है, बट राइट नाउ इट इज, लेट अस से 200 इज योर इनिशियल मार्जिन फॉर वन शेयर, ओरिजिनल शेयर का प्राइस है 2000, आप 200 रुपए में वो शेयर खरीद सकते हो, 200 रुपए के इनिशियल मार्जिन पे। अब आपका लॉट साइज कितना बेटा 100। पहली बात, कैश मार्केट में आप कितने भी क्वांटिटी खरीद सकते हो, बट फ्यूचर मार्केट में आपको कंपलसरी लॉट्स में खरीदना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कम ऑन, पॉइंट नंबर 2 इज व्हाट, दैट you will have to not pay the full money, you have to pay only initial margin. Now you look at how the people are getting attracted. कितना रुपया देंगे तो अपने को 100 शेयर मिल जाएगा इधर 20,000 में। मैं तो घर से लेके निकला था, कितना लेके निकले थे अपन 1 लाख, हमने बोला था जो भी है पूरा इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब हाउ मेनी लॉट्स विल यू बाय इनटू 5 लॉट्स। सो आपका 1 लाख का इनिशियल मार्जिन चला गया और आपने 5 लॉट्स बाय किए, 1 लाख का इनिशियल मार्जिन गया। क्लियर, इधर तक क्लियर? श्योर? एनी डाउट्स हियर? अभिराज, धीर, क्लियर? नाउ एक और धीर आ गया, 1 लाख हो गया। नाउ यू हैव एंटर्ड, नाउ लेट्स प्ले दिस गेम, एंड लेट्स डू इट फास्टर। पॉइंट नंबर 1, you have, your price have gone from 2000, it has now reached 2100. That means you made profit out of it. How much profit did you make? Let's see, 2000 minus 2100 into, come on louder, how many shares in one lot? 100 shares into how many lots did you buy? आपको फायदा कितने का हुआ दोस्तों? आपको प्रॉफिट कितने का हो गया? 50,000 का प्रॉफिट हो गया बच्चों। कितने का प्रॉफिट हो गया आपको? 50,000 का प्रॉफिट हो गया। और आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? 1 लाख। यू इन्वेस्टेड 1 लाख इन द कैश मार्केट, यू मेड ओनली 5,000 का प्रॉफिट। You invested 1 lakh in future market, you made how much profit? 50,000। आपको समझ में आ रहा है फ्यूचर मार्केट में कितना फायदा है? But let's take the game reverse। अब ये 2000 का 1950 ही हुआ, 50 रुपया तो भाव गिर सकता है। सॉरी, हिंडरबर्ग ने नया रिपोर्ट निकाला, 100 रुपया हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मेरे को बोलो आप, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Now if this happened, you try to understand, you have exposed yourself in the spot market. Forget this much, let me bring you down for 1000, let me bring it down to 1000. So here you made a loss. How much loss did you make? You made 1000 का loss for 50 units, आपने 50,000 का loss किया। Now guys, you look at the future market, आपने 2000 minus 1000 into 100 into 5, पब्लिक की आंखें खुल गए ब्रो। So we made a loss of 5 lakhs. Now this is how riskier and beneficial future market can be. Why did I take up this sum right now? Just to explain you the difference between spot market and future market. But always understand one thing, spot market में आपको क्या देना पड़ेगा? पूरा पैसा देना पड़ेगा। फ्यूचर मार्केट में आपको क्या देना पड़ेगा? कैश मार्केट में आपका ओनरशिप है, फ्यूचर मार्केट में आपका इस पेपर का ओनरशिप है, बस यू ओन द डेरिवेटिव, यू डोंट ओन, इट इज जस्ट द डिराइव फ्रॉम दैट। आर यू गेटिंग इट एवरीबॉडी? श्योर? कैन वी गो अहेड? 100%? जाओ मैं आगे, चलो एक और, एक सेकेंड। आपको कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में डिफरेंस समझा? श्योर भाई, तुम लोग को समझा ना ये क्या होता है अभी? नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं बिफोर वी गो अहेड, हेल्प मी विद दिस। Let's talk on Sensex and Nifty. Now guys, for all the people here, especially the people who have joined new, do you know what is Sensex and Nifty? Do you know what is Sensex and Nifty पर? जितना भी पता है बोले, वो ऐप पे देखते हैं वो बोले। So honest बेटा, love you for this. Now time to call maintenance। दिनेश तू 15 मिनट का नैप ले ले। Sensex and Nifty, what is Sensex बेटा? I'll explain. Sensex is
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, कम ऑन गाइस, सुपर 50, सुपर 30, सुपर 30, टॉप 30 शेयर्स स्टॉक फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज, 2-3 इंफ्रा रियल एस्टेट में से, 2-3 आईटी में से, 1-2 बैंक में से, वो सब का वेटेड एवरेज निकालकर सेंसेक्स डिफाइन होता है. दैट इज व्हाट द सेंसेक्स इज, बीएससी. सो इफ आई सी द बीएससी, वो बोलते हैं ना मार्केट ऊपर चढ़ा, मार्केट ऊपर चढ़ा मतलब वेटेड एवरेज बॉक्स ऑफ दिस सुपर 30 हैव गॉन अप. तो अगर सुपर 30 में तू ये समझने की कोशिश कर, हम लोग क्लास में है, ओके, मैंने 10 स्टूडेंट्स को डिफाइन कर दिया कि ये स्टूडेंट आर अवर एडनोवेट स्टार परफॉर्मर्स. So if these 10 students are star performers, moment their marks goes up, Ednovate marks goes up. Moment their marks goes down, Ednovate marks goes down. Moment 8 perform good, 2 perform bad, average whatever will happen to all. That is your Bombay Stock Exchange. Let's go to Nifty. Okay, here is NSE. This is from NSE. जैसे ये super 30 है बेटा, this is your super 50. ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे है और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे सेम चीज. अब ये इंडेक्स है, कैसे इंडेक्स कंप्यूट करते हैं मैंने लिखा है अभी, बाकी सब लोगों को बाद में सिखाएंगे, वी विल फाइंड दैट ऑल्सो. बट नाउ लुक एट दिस. इनफैक्ट कितना है बोल, कल का निफ्टी कितना है अभी देख लेना बेटा, किधर अपने को पैसा लग रहा है. कमन हो, किधर गया तुम्हारा मनी कंट्रोल. 22,000 है, 22,419. So now current Nifty is 22,419. Now this is with the base बेटा. ये जब भी निफ्टी बना था तब सुपर 30 का एवरेज लिया था, और आज उसके एवरेज के कंपैरिजन में तभी 100 था, तो अभी उसके एवरेज के कंपैरिजन में आज 22,419 हो गया. Are you getting it? That is how the company has grown. Okay, जैसे अपने इंडेक्सेशन करते थे ना वैसे. Now you try to understand. Nifty currently is 22,419. So guys, you will always have Nifty futures. Now let's talk about Nifty future, and let's take June Nifty futures. Very interesting Nifty future. One of the most traded Nifty future would be June. Tell me why? Because 4th June is the election, guys. 4th June is the election. Now you try to understand. It is very bright chances कि अगर निफ्टी एक अभी थोड़े दिनों में अगर करेक्शन लेता है और नीचे गिरता है, तो दोस्तों अच्छा चांस है यू कैन बाय द निफ्टी फ्यूचर्स, बिकॉज पोस्ट इलेक्शन, प्रिज्यूमिंग वॉट एवर यू आर अज्यूमिंग, इवन आई एम अज्यूमिंग सेम, सो इन दैट केस यू वुड सी एन अपवर्ड मूवमेंट. बट अगर अभी अननेसेसरली निफ्टी बढ़ रहा है, अननेसेसरली यू कैन सी दैट यार ये तो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो देयर इज अ ब्राइट चांसेस के इलेक्शन रिजल्ट, बिकॉज इट्स अ बिग अनाउंसमेंट, then it will again take the correction and it will fall down. अभी ये क्या होगा हमें नहीं मालूम. अब तू खुद समझ, तूने आज 10 महीने का तेरा स्टाइपेंड जमा करके तूने आज निफ्टी फ्यूचर ले लिया, और उधर अचानक से किसी को भी मालूम नहीं, ईरान को मन हुआ कि नहीं चलो लेट्स प्ले. नाउ दैट इंपैक्ट इमीडिएटली केम हियर. फट देखे तो मतलब तू सुबह उठ के तू इतना टेंशन में आ जाएगा, भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि बाय द टाइम यू वांटेड टू एग्जिट तब तक उतना करेक्शन नहीं आ गया जितना वो नीचे चला गया. आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज द रिस्क. कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. सो निफ्टी फ्यूचर जून. नाउ गाइस, इफ इट इज 22,419 राइट नाउ, okay, if it is 22,419 right now, you try to understand Nifty future, you would be getting it around 23,000. Let's talk about 23,000. आपको 23,000 में मिल रहा है. अब आपने ये खरीद लिया, क्यों खरीद लिया मेरे को बोलो फटाफट, क्यों खरीद लिया? क्योंकि आपको लगता है, so you have bought Nifty future, बेटा, you have bought Nifty future. Now when you buy Nifty future, what is known as, what is this position for all those who know this position? Which position? You took long position, बच्चों. You are long on Nifty. Similarly, whomsoever will sell this Nifty, it is termed as short on Nifty. But एक चीज याद रखिए, आप खरीद सकते हो after paying initial margin, and you will have to buy whatever is the lot specified. Now what I want you guys to understand is, how is this liquid? How is this liquid? आप समझ, आपने जून में खरीदा, आज करंटली चल रहा है 22,419. अभी ये जो 22,419 है एग्जैक्टली तब जून का फ्यूचर चला 23,000. अगर ये कल 22,500 हो गया, तो आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड इवन दिस विल गो एंड दिस विल डांस. सो दिस प्राइस विल डांस बेस्ड ऑन द स्पॉट मार्केट हैपनिंग. इधर तक क्लियर? इवेंचुअली जून में वो सेम हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट. सो
22,500 कितने में खरीदा तुम लोग ने? 23,000 में। अब दोस्तों जून FUT, इसका प्राइस चेंज होते जाएगा, एवरी सेकेंड इट विल चेंज, देयरफॉर आई कॉल इट एज कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग विल हैपन हियर, एवरी सेकेंड चेंज. सो लेट्स कीप 4 dates. टुडे इज व्हाट गाइस? 20th April. नेक्स्ट डेट फास्ट 29th April. वाओ. अबे डोबी ना, 2nd May ले लो, उसके बाद 15th May ले लो, उसके बाद अंतिम 27 May ले लो, उसके बाद 7th June ले लो, और उसके बाद 25 जून ले लो. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन बेटा? यू आर एक्सपेक्टिंग दैट प्राइस विल कीप गोइंग अप. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस विल कीप गोइंग अप, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये 23,000 में आपने, यू हैड बॉट दिस इन 23,000, यू बॉट दिस इन 23,000. 28 तारीख को भाव हो गया 23,500, तो आपने कोई पोजीशन नहीं लिया, आप तो खुश हो गए कि भाव बढ़ गया. इमीडिएटली 2nd May को मार्केट गिर के ये हो गया 22,600. अब if it has fallen down, तो you will now panic. Since it has fallen down, now you try to understand. भाव जो भी होगा तेरे को लास्ट डे पर कंपलसरी खरीदना ही पड़ेगा, सॉरी बेचना ही पड़ेगा. You have bought today ना, you have bought today at what price? You have bought today at what price? 23,000. Whatever the price may be, you will have to sell. So now let's start. 22,600. Per, what do you feel? You want to sell or you want to keep? Keep. Keep. Next day 20,000. Keep or sell? Keep. Okay, next day 21,000. Keep or sell? Keep. Next day 22,000. Keep or sell? Keep or sell? You don't have option. Here you don't have option. But only point is, आप ये समझो, every day with every price you have option to take the position against, and therefore this is known as a liquid asset. Why liquid asset? क्योंकि आप समझो आपने ये 23,000 में खरीदा है, कल 23,100 भाव हुआ, आप बिंदास कल जाकर बेच दो. आज आपने 23,000 में खरीदा है, कल भाव उसका 22,500 हो गया, आप बिंदास बेच दो. आप क्यों बेचोगे? क्योंकि अभी आपको डर लग रहा है कि जो आप सोचो वो नहीं होगा, तो आप यू सेल इट. अगर आपको लग रहा है होगा तो यू बाय इट, यू होल्ड इट, एंड अकॉर्डिंगली विल चेंज, कीप चेंजिंग. बट एवरी सच ट्रांजेक्शन यू विल बी डूइंग एट वेयर? विद द एक्सचेंज. हु हैव गारंटीड यू? Exchange. And then exchange is assuring the price. Did you understand the market at least? Everybody, any doubts here? Pakka, no doubts? Can we go ahead? Sure. We relax for 2 minutes, then we start with the notes. Thank you. हाँ बेटा, दो मिनट के बाद पूछो, पब्लिक को मुंह धोने. ये जो हाँ हेलो कश आएगा बेटा, once don't worry, I'll get there. Now let's settle guys. Now give heading derivative.
Okay. Public. Give heading derivative. Oh, मेरा कॉन्ट्रैक्ट दे वापस. ये क्यों पेन मांगी? बोल बच्चे. Now, oi, public, hold on. Now, guys. So guys, I'll tell you what we do is, we sort of save time, and whatever I want to dictate is already there. Every day I'll share you PDF. No means no, beta, because people write. This only by giving you this note will save almost half an hour every day. So, but I really want everybody to copy this in your notebook. Well, these notes are not in the form that you do not copy. You either copy this as is form or you at least make a good note out of it. Okay, they are already summarized one only. But whatever I was going to dictate now, I would rather read it, we discuss it out, and then you copy at home. Works? I can still dictate, but dictating will only kill time. Only kill time. ऐसा देखो मत बोलो कुछ. शू करो? Dictate करो. हाँ, no point guys. Let's not waste time. Let's read it. Here. What is derivative? Oi! Shh. What is derivative? Derivative is a financial instrument which derive its value, price and return from the value of some other financial instruments, which is known as an underlying asset, which may be stock, commodity, currency, index, bonds, interest rate, etc. When the price of underlying asset changes, the price of derivative instrument will also change. Can I say we have already understood this? Everyone? Can you go ahead? Now guys, there is this distinguish between cash market and derivative market, which we've just done. Now let's talk about distinguish between cash market and derivative market. What happens? सबसे पहले trading. कैश मार्केट में क्या होगा? बोलो मेरे को, ऐसे बोलो विदाउट. लेट्स रीड इट. ट्रेडिंग कैसे होगा कैश मार्केट में? यू विल बी एक्चुअली बाइंग द शेयर्स, एंड योर यू वुड नॉट बी बाइंग द शेयर्स, यू विल बाइंग द contract which are based on those shares. So your actual tangible assets are traded, equity, debentures, etc. And their contract based on assets which may be tangible, intangible are traded future option. Tangible, intangible what? आप मेरी बात सुनो. रिलायंस का हम लोग ने फ्यूचर्स लिया, राइट? तो रिलायंस का फ्यूचर भी है और रिलायंस का शेयर भी है. आई रिपीट, रिलायंस का हम लोग ने फ्यूचर लिया, रिलायंस का फ्यूचर भी है और रिलायंस का शेयर भी है. सेकेंड ऑप्शन में हम लोग ने निफ्टी फ्यूचर्स लिया. सेकेंड ऑप्शन में हम लोग ने निफ्टी फ्यूचर्स लिया. निफ्टी फ्यूचर, देयर इज नो शेयर्स. हे भगवान, निफ्टी फ्यूचर तो है ही नहीं ना, बिकॉज निफ्टी इज एन एवरेज मार्क्स ऑफ 50 पीपल. व्हाट इज निफ्टी? एन एवरेज मार्क्स ऑफ 50 पीपल. सो देयर इज नो शेयर्स ऑफ निफ्टी. There is only futures of Nifty because Nifty itself is an intangible, but उसका futures है. Reliance tangible, उसका shares भी है और उसका futures भी है. Next, investment. This also we have covered. How much investment do we have to make in case of cash market? Full amount. In case of only initial margin will have to be divided. So cash market involves investing entire price upfront, and futures involve investing only margin in money, which may be in range of 10 to 20% of investment. Options involve payment of only premium amount. I will discuss option in detail, but have you heard about options? No? Nice, I'll explain. Options and futures. So एक है आपका forward contract. Derivative products की बात करें. So if somebody asks me what are your derivative product? So guys, my derivative products are forwards, futures, options and swaps. We've learned forward, we've seen futures. What are options? एक ही सिंपल चीज बोलता हूं. आज आपको लग रहा है कि 2000 का भाव है, करेक्ट? यू बिलीव इट विल राइज टू 2100. एवरीबडी पे अटेंशन, मजा आएगा. देखो बहुत इंटरेस्टिंग है. 2000 का भाव है, यू बिलीव 2100. योर फर्स्ट ऑप्शन इज यू बाय शेयर्स.
bindas buy shares. But you have understood, if you buy share, you'll have to invest full money. Okay, but you have safety. This is your asset. पांचवी इधर देख. You have your asset. दूसरा option is what? You enter into forward contract. What is forward contract? कि भाई future में जो भी भाव होगा, I will buy from you at this price only. Say for example 2100, but then whatever the price may be, you will transact that. तीसरा ऑप्शन इज यू बाय फ्यूचर्स. सो तुम लोगों ने 1 month फ्यूचर बाय कर लिया आज ही 2100 पे. अब उस दिन जो भी भाव होने दो, 2200, 2300 जो भी हो गया, अगर आपने जो सोचा वो हुआ तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यू हैव बॉट एट 2100. नाउ यू कैन सेल, यू कैन सेल, यू कैन सेल. भाव बढ़ गया 2200 तो यू मेड प्रॉफिट. 2300 you made profit. 1900 you made louder. Clear. Future समझा आप लोगों को? This is on expiry. So you have bought today for 2100. If your estimates goes right, you will make profit loss. Now comes options. Options में ना बच्चों दो चीज होती है. एक होता है आपका कॉल ऑप्शन और एक होता है आपका पुट ऑप्शन. ये बहुत डिटेल में आएगा, मैं खाली एक ही मिनट में इसको वाइंड अप कर रहा हूं क्योंकि वी आर इनटू फ्यूचर्स राइट नाउ. अपने नोटबुक, अपने टेक्स्ट बुक में भी वी हैव फ्यूचर्स सम डिफरेंट, ऑप्शन सम डिफरेंट, स्वैप्स डिफरेंट. नाउ व्हाट इज कॉल ऑप्शन? कॉल ऑप्शन इज राइट टू बाय. वहां पर इनिशियल मार्जिन 10% दिया है आप लोगों ने, इधर और भी कम अमाउंट ऑफ प्रीमियम देकर आप ले लोगे राइट टू बाय एट 2100. अब ऑन दैट डे भाव इज 2200, 2300 एंड 1800. कम ऑन गाइस, अभी क्या होगा बताए? यही अगर फ्यूचर होता तो यू वुड हैव बुक प्रॉफिट, यू वुड हैव बुक प्रॉफिट एंड यू वुड हैव बुक लॉस. हेलो, आर यू ऑल देयर विथ मी? बट ऑप्शंस में क्या होगा बताए? यू हैव एन ऑप्शन. You have bought call option. You have bought call option. Call option is right to purchase. Right to purchase at 2100. Now Deep, what will happen is, भाव 2200 हो गया मार्केट में, तो आपके पास हक है कि आप इसको कितने में परचेस कर सकते हो? कम ऑन, 2100 में, और उसको बेचना पड़ेगा सामने वाले. आपके पास हक है क्योंकि आपने बाय किया है ऑप्शन, आपने प्रीमियम देके बाय किया है. यू हैव पेड प्रीमियम टू हिम एंड सेड मेरे को ये राइट चाहिए, चल दिया. 2200 हो गया, यू आर हैप्पी, तो यू विल एग्जीक्यूट दिस ट्रांजैक्शन. यू मेड 100 रुपीज का प्रॉफिट. 2300 हो गया, कम ऑन गाइस, यू विल बाय इट, यू विल स्टिल मेक प्रॉफिट. 1800 हो गया. नाउ इफ यू बाय दिस यू विल मेक लॉस बिकॉज यू हैव राइट टू परचेज एट व्हाट प्राइस? 2100, बट एक्चुअल प्राइस प्रिवेलिंग इज व्हाट? 1800. बट नाउ योर यू वुड डिनाई कि चल हट, नहीं खरीदना है. बोलते भाई तूने तो बोला था ना 2100 में खरीदेगा. मैंने बोला नहीं था, मेरे पास ऑप्शन था. आई हैड एन ऑप्शन. इन फ्यूचर यू आर ऑब्लिगेटेड, तेरे को करना ही पड़ेगा. ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन है. ऑप्शन ओनली, नेम इज ओनली डिराइव्ड देयर कि यू हैव एन ऑप्शन. यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड, यू हैव एन ऑप्शन वेदर टू एग्जीक्यूट. सो जब भी आपको फायदा होगा यू विल ऑब्वियसली गो फॉर इट, और जब भी आपको लॉस होगा यू विल नॉट गो फॉर इट. तो क्या ऑप्शन में आपको कभी भी नुकसान होगा? लाउडर, अभी जितना सीखा है उसके ऊपर तो बोलो यार. क्या आपको ऑप्शन में कभी भी नुकसान होगा? यस होगा. कितना होगा? जो भी आप प्रीमियम दे रहे हो ना वो आपका लॉस है. प्रीमियम इज योर लॉस. सो लॉस का लिमिट है. प्रीमियम इज योर लॉस. इन फ्यूचर्स वी यूज्ड टू डिपॉजिट इनिशियल मार्जिन जो वापस आता था. इन ऑप्शन यू विल हैव टू पे प्रीमियम जो वापस कभी भी नहीं आएगा. ये प्रीमियम है, ये टोकन में नहीं है. ये आपका गया, अभी आपने घर लिया तो जो भाव पे बोला वो मिल जाएगा. घर नहीं लिया तो टोकन में नहीं गया. समझा आपको? दैट इज ऑप्शन. व्हाट इज पुट ऑप्शन? पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल. राइट टू सेल. यू बिलीव दैट प्राइस विल गो डाउन. You believe that price will go down. So you told boss, I want to take up a right to sell 2000. Whatever the price will be, I will sell it to you at what price beta? 2000. Now let's evaluate this proposal. Market में भाव 1800 हो गया. Will you execute? Market price is 1800. You have an option to sell it at 2000. Market में price 1600 हो गया. Will you execute? Yes. Market में भाव 2400 हो गया.
You will not execute. So what have you lost? What have you lost? Premium. Are you getting it? So ये options है, ठीक है? So आपका derivative market we were discussing futures and options. So what is futures? Futures involves investing only some margin in money which may be in the range of 10 to 20% of investment value. Margin option involves what? Payment of only premium amount. Fair enough, guys? Let's move forward. What is the purpose? What is the purpose? Is primarily for consumption or investment. Where am I talking about? अगर आप कैश मार्केट में हो तो आपका प्राइमरी पर्पस क्या है कि आप डिलीवरी ले लो, अब आप उसको या तो होल्ड करोगे या जब भी आपको मन करे आप बेचोगे. बट यहाँ पर बच्चों हेजिंग है, स्पेक्युलेटिंग है, आर्बिट्रेज है. नेक्स्ट इज ओनरशिप. लेट मी फर्स्ट कवर ओनरशिप. होल्डर ऑफ द शेयर बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी. होल्डर ऑफ द फ्यूचर, डू यू बिकम द पार्ट ऑफ द कंपनी? No, you are to any which was speculator for them. Now comes hedging. There are three parties involved. Very important. तीन parties involved. एक है hedger, एक है speculator और एक है arbitrator. Who is the hedger? What do you call it as hedger? Hedger कौन है? Hedger धवल सर थे जब उनके पास बॉटल परचेज करना था प्लास्टिक, तब उन्होंने पारस के साथ एग्रीमेंट किया कि पारस तो मेरे को ये भाव में बेचेगा क्या, तो मेरे को ये भाव में क्रॉप बेचेगा क्या. उस पिक्चर में मेरे पास एक्चुअली क्रॉप था. आई एक्चुअली वांटेड टू सेल दैट क्रॉप. आई हैड एन इंटेंशन टू सेल दैट क्रॉप. आई वांटेड टू फ्रीज द प्राइस. सो आई वाज ऑलवेज पार्टी. बट इन केस ऑफ सेकेंड सिनेरियो wherein we bought nifty futures like that only. Why did we buy? Because we feel that price will go up. But our feeling may fail also. So in that case, I am a speculator. So speculator confirm as is exposed to the risk. Hedger is limiting his own risk. कि जो भी भाव था वो उसको लिमिट करेगा. और लास्ट में arbitrager specially for those people who have joined maybe not there before. What do you mean by arbitrage, guys? Come on, 3, 2, 1, shout. Risk free guaranteed profit bidder. So what would be your objective? अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर्स में सस्ता है, स्पॉट में महंगा है, या वाइस वर्सा, स्पॉट में सस्ता है, फ्यूचर में महंगा है, तो मैं आपको सिखाऊंगा, मे बी आज ही हम लोग सीखेंगे. यू विल रियलाइज दैट यू कैन मेक रिस्क फ्री गारंटेड प्रॉफिट बाय प्लेइंग दिस. बट आर्बिट्रेज इज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड प्रोडक्ट. तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा ऐसा जरूरी, मतलब हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है. सो ये तीन लोग हैं, इन तीनों का डेफिनेशन मैंने दिया है सो दैट जस्ट दैट यू अंडरस्टैंड दिस गेम. ठीक है, लेट्स कम टू एन एग्जाम्पल. एक काम करो, आई डोंट नो व्हाट वुड यू डू नाउ गाइस. हाउ डू यू मेक नोट्स नाउ? इन ऑल द चैप्टर्स वी हैव रिटन ऑल दिस नोट्स. So you leave two sides, at least make summary notes of them. Can I? No? I believe you should. And those who don't want to, at least do one thing, write down example on forward contract. Example तो सब लिखेंगे. After two sides you should write. Two sides आपको वो कॉपी करने के लिए लगा है. आएगा बेटा, वो सब बहुत डिटेल में आएगा. कैन वी राइट डाउन? लेट्स राइट एन एग्जाम्पल. प्राइस ऑफ प्लास्टिक may fluctuate. Example of forward contract. Price of plastic may fluctuate from 110 to 180. From 110 to 180. From 110 to 180. Dhawal sir enter into forward contract with Paras. 3-month forward contract कर दो. Dhawal sir enters into 3-month forward contract with Paras to buy at the rate of 150 per kg. To buy at the rate of 150 per kg. Now guys, here just that last example I'm just continuing you.
so that you understand. Forward contract के लिए इतना ही है हमारे पास. We do a lot of forward contract when we do forex. Okay, so here if we just term it, Dhawal sir and Paras, he is the buyer, he is the seller. Contract 3 month future, 3 month forward at the rate of 150. Correct? Guys, since I am the buyer, what position is this? You can copy this. जो भी मैं लिख रहा हूँ आप कॉपी करें. ये इनका हो गया लॉन्ग पोजीशन, इनका हो गया शॉर्ट पोजीशन. थ्री मंथ फॉरवर्ड 150. क्वांटिटी नहीं डिफाइन किया अपन ने. क्वांटिटी 4000 kg कर दो. $4,000 kg. मेरे को प्रॉफिट लॉस लिखना चाहिए. हाँ बेटा बोल. बंद कर. देन गाइस ओए प्रॉफिट स्लैश लॉस लिखो तुम लोग. रेडी गाइस, कितना है प्रॉफिट इधर? 40,000 प्रॉफिट, इधर 40,000 लॉस, बराबर ना? इधर 80,000, इधर 1,20,000. श्योर? Can we go ahead? Hello. ओए सुरपनका. कैसा है? Done guys, done? Can we go ahead? Let's get back. So, what is your forward contract? A forward contract is a customized agreement entered between two parties under which, this is what I would have dictated guys and you would have written. We've saved so much of time. A forward contract is customized agreement, but तुम लोग साला इज्जत ही under which one party commits to buy and other party commits to sell a specified asset of a specified asset by specified quantity at specified place on a specified future date at a price agreed today. The two parties hedges themselves against the possible adverse fluctuation in price. By the same time, they will be deprived by
द गेन अराइजिंग फ्रॉम पॉसिबल फेवरेबल फ्लक्चुएशन इन द प्राइस, क्योंकि जो भी अगर उन लोगों का भाव अच्छा भी होता है तो भी उन लोगों को यही प्राइस में देखना पड़ेगा, हम लोगों को दे विल हैव टू कॉन्ट्रैक्ट एट दैट प्राइस. नाउ व्हाट आर द फीचर्स? इट इज ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट. कम ऑन क्विकली दिया, व्हाट इज ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट? हैव यू हर्ड अबाउट ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट? ओटीसी क्या होता है? हर्ड सर, हर्ड पूछा है तो हर्ड पता थोड़ी होता है ये सर. ना चल बोल कृष्णा, तो बोल. नहीं पता ओवर द काउंटर? ओवर द काउंटर इज वेरी सिंपल बॉस. आई एंड पारस मेट, आमने सामने बैठकर हम लोगों ने डील किया. दैट इज ओवर द काउंटर. यू गो टू द बैंक, यू टेल हिम दैट आई विल सेल यू $5,000. दैट इज ओवर द काउंटर. फ्यूचर इज योर एक्सचेंज ट्रेडेड. एक्सचेंज ट्रेडेड क्यों? क्योंकि वहां पर आप सामने पार्टी को नहीं देखते. दैट इज ओवर द काउंटर. गॉट इट बेटा एवरीवन? नेक्स्ट क्विक. Every forward contract is unique. Parties are expected to perform and therefore exists a counterparty default risk. Price fluctuation risk is eliminated. No need of deposit margin. Settlement of forward contract can be either deliverable or cash settle. Again, a very important statement. Guys, what do you mean by either deliverable or cash settle? Krutat, explain कर बेटा ये. Settlement of a forward contract can be either deliverable or cash settled. जल्दी वो कंटिन्यू कर एग्जाम्पल से. हम लोग ने क्या दिया था बेटा कि 150 रुपीज पर केजी में हम लोग बाय करेंगे, तो आप एक्चुअली जाके उसके साथ बाय करोगे तो वो आपको माल देगा और आप उसको 150 पर केजी दोगे. दैट इज द एक्चुअल डिलीवरेबल. व्हाट इज कैश सेटल? 160 हो गया तो मैं बोला नहीं भाई मेरे को भी तेरे से नहीं खरीदना, मैं बाहर से खरीदूंगा. बोलता बॉस वी हैव एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो बोला ठीक है ना, जो भी लॉस हो रहा है वो मैं पैक कर रहा हूं. सो बाहर से आपका 160 है ना, बाहर का जो भी लॉस होगा वो आई पे, जो भी प्रॉफिट होगा आई टेक फ्रॉम यू. दिस इज कैश सेटल. कैश सेटल में क्या होगा बच्चों? ओनली द डिफरेंस इज सेटल. देयर इज नो एक्चुअल डिलीवरी. सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी बोथ. इट कैन बी डिलीवरेबल ऑल्सो और इट कैन बी कैश सेटल ऑल्सो. इट इज लाइक माई फ्रेंड वॉन्टेड टू वॉच चेन्नई सुपर किंग मैच. सो ही सेड सर टिकट का प्राइस कितना? मैं चल तेरे को 5,000 में देगा. अभी 5,000 में या तो मैं एक्चुअली उसको टिकट दूं या तो मैं बोला भाई मेरे पास टिकट नहीं है. बोला सर तो फिर मेरे को मार्केट से खरीदना पड़ेगा. तो वो मार्केट में खरीदने गया, उसको 6,000 में पड़ा, तो उसको 1,000 का लॉस हो गया. वो लॉस मैं बेयर करेगा. आर यू गेटिंग इट? सो एक्चुअल डिलीवरी इज व्हाट? आई विल हैंड ओवर हिम द टिकट, ही विल पे मी 5,000. वॉट एवर विल बी द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट. एंड कैश सेटल मीन्स व्हाट? आई विल टेल हिम यू बाय फ्रॉम द मार्केट अगर मिला तो, एंड वॉट एवर इज द प्राइस प्रिवेलिंग that we will offset. Clear? Next, forward contract are illiquid. Illiquid मतलब क्या? ये देकर आप किसी और को बेच नहीं सकते. जस्ट लाइक फ्यूचर में क्या हुआ, मेरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही बॉट, हिज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही बॉट, हिज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शी बॉट, एंड सो ऑन. दैट इज लिक्विड. हियर दिस इज इलिक्विड. क्लियर? पक्का? चलो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे एक एग्जांपल लेते हैं. राइट डाउन एग्जांपल ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. ये तुम लोग इसके लिए कितना जगह छोड़ रहे हो? यू वांट टू नो द मेजरमेंट? आई विल गिव यू द एग्जैक्ट मेजरमेंट. हाँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विल नीड एटलीस्ट 1.5 पेज. इतना लिखने के लिए. कितना लिखने के लिए? अप टू फीचर्स और ये सब लिखने के लिए अरे नहीं आप ये आर्बिट्रेजर ये लिखोगे ना. एक सेकेंड. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वन साइड, वन साइड. इतना लिखने के लिए बेटा यू नीड वन साइड. आपको ये छोटा लग रहा है, ये बेटा मेरे पास लिखा हुआ है एक्चुअल पेज. ठीक है, तुम लोग ने लास्ट क्या लिखा है? एग्जाम्पल. उसके पहले तुम लोग ने कितना लाइन पेज छोड़ा है? हाँ, 2 साइड्स छोड़ा है ना. 2 साइड्स देन एग्जाम्पल देन लीव वन साइड. नहीं पूछू क्या करते हो तुम लोग? ओके, मैं आपको बोलता हूं क्या करने का है. ठीक है, पहले बेटा फर्स्ट 2 साइड्स में ये सब आ जाएगा बराबर, इधर तक. फिर इधर एग्जाम्पल है जो आपने बुक में लिख दिया है. ओके, फिर आपका वन साइड में ये आएगा इधर. और डू वन थिंग, आप हाँ वन साइड ही वन साइड आया बराबर. इसके लिए वन साइड. नाउ अगेन राइट एग्जाम्पल. गिव एडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट एग्जाम्पल.
Now, આ બધા કેટલા अलग अलग प्रॉब्लम છે दोस्त. ये मिलेगा बेटा, ये पेज मिलेगा ना, तो नहीं लिखने का. आलस बेटा, आलस. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. Now guys, let's take an example on future contract, please. Say there is TCS, you know TCS? Thank you. TCS जून फ्यूचर, जून नहीं छोड़ो, अपन मई में है ना अभी. मई फ्यूचर प्राइस ₹500, lot size 200 share. Lot size 200 shares. गाइस इसका एक्सपायरी कब आएगा बोलो? ये आप लोगों को समझ भी जाएगा. इसके लिए एक्सपायरी ऑन लास्ट थर्सडे ऑफ मे, दैट इज 30th है बेटा. में. Okay. Here I am also giving you that note. 3 types of futures are available at any given point of time, guys. This is just for your reference. कृतार्थ ये लिखने का बेटा, ये उसमें नहीं है प्रिंट में. So it is current month future. ये खाली आपके रेफरेंस के लिए. Current month future, next month future, or you also call it as near month future, which is next. Near month future, and then come far month future. इधर आएगा जून एक्सपायरी. जून के करंट मंथ इज मई. मई एक्सपायरी, जून एक्सपायरी, जुलाई एक्सपायरी. 500, 510, 540. Sorry. Thank you. Can we? At any given day, beta, you will go and check futures. ना आपको 3 future दिखेगा ही. You will get 3 futures of that particular asset. There will be 3 futures which is known as current month, next month, and near month and far month. So which is nothing but current month is current month, near month is next month, and far month is उसके बाद वाला महीना. 3 उससे ज़्यादा कभी futures अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में. ओके. नाउ अभी हम लोग ने एग्जाम्पल लिया. लेट्स कंसिडर प्रथम बॉट one lot on 5th May. On 5th May. अभी 1 lot का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना हो गया? कॉन्ट्रैक्ट साइज, कम ऑन इन योर कैलकुलेशन, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट साइज? हाँ बच्चा, 1 lakh. So I'll write down contract size, contract value is equal to ₹500 per share into 1 lot of 200 share is equal to 1 lakh. Say for example, initial margin there is ₹20,000.
Now, so guys, अभी 2 मिनट रुक जाओ तुम लोग. If I draw this timeline here, look at this timeline. Today he bought it on 5th May. On 5th May, he bought one lot. He bought one lot. So here on 30th May, that is expiry. दिस इज द एक्सपायरी डेट. अब भाई इसका कोई वैल्यू नहीं है. आज आपको रिवर्स ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा. सो योर ही विल हैव टू सेल. He will have to sell because he had bought. Had it been he would have sold one lot. Had it been he would have sold one lot. So what he would do on expiry? He will have to buy one lot. But what is the advantage? Why we call it as liquid? Why we call it as liquid? Because 5th May से 30th May के दिन 20 वर्किंग डेज अगर है तो इस 20 वर्किंग डेज और मे बी 15 वर्किंग डेज on any given day he can take the position. And on what price he will have to do? Whatever is the value of that future prevailing on that day, which will be close to its spot price. So if he had bought one lot on 5th May, he wants to sell it on 6th May, he can do that. 16th May, he can do that. 20th May, he can do that. 25th May, he can do that. Whenever he want to. But now he will have to sell because he had originally bought. Got it बेटा? Clear एकदम? Deep? Clear? और अगर आपने कुछ भी नहीं किया तब तक, अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो मुबारक हो, आपको एक्सपायरी हुई है और यहां पर आपको रिएक्ट करना ही पड़ेगा. इट इज कंपल्शन नाउ. You are on the last day and here it is compulsory for you that you will have to, he will have to sell at spot. Or then they let me not write the spot price. He will have to sell. Fair enough? Now let us take the scenarios here. What can happen in the spot price? On that day, there may be different spot price. If spot price is say 520, spot price is equal to 410 and spot is equal to 500. Now what will happen in the first case? He will have to sell at 520. So did he make profit or loss? Hello. So here it is profit. कितना प्रॉफिट हो गया बच्चों? उसको 520 में बेचा, 500 में खरीदा था. कितने शेयर्स थे बच्चों? 200 शेयर्स. कितना हो गया? कम ऑन आंसर. हाँ 40,000. ईयर बच्चों 410 में बेचा. ये आई थिंक दिस इज लॉस ना. हेलो. 410 माइनस 500 इंटू 200. बोलो 18,000 लॉस. और इधर बेटा नो लॉस नो प्रॉफिट. Fair enough? Draw this timeline. वाचिले खाली.
कॉपी इट गाइस. लब्धि कॉपी करिए. बताओ करो. हाँ हाँ बेटा, एकदम सिंपल लग बच्चों. तूने बाय किया था 5 में को, इधर और लिख दे 500 रुपया. 500 रुपया लिख दे इधर, क्योंकि 500 में खरीदा ना बेटा अपने को. जून फ्यूचर तभी 500 में था, तो हम लोग ने 500 में खरीदा था. अब तेरे को बेटा ऑपोजिट पोजीशन लेना है एक्सपायरी पे, सेल करेगा. ठीक है, तो स्पॉट प्राइस उस दिन 520 है. तो सेल कितने में करेगा? कॉन्ट्रैक्ट 500 का है. तूने कितने में खरीदा था और तू बेच कितने में रहा है? ए 1 सेकेंड प्रियांशु. हाँ बेटा, तूने 520 में बेचा. अब ऐसा नहीं है बच्चों, उस दिन रिवर्स होगा. अभी तू हेजर नहीं है इधर. यू आर सी, तेरे को फ्यूचर में क्या प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, ऐसा. ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? सो व्हेन यू बॉट दिस कॉन्ट्रैक्ट, you bought this contract for what price? 500. Now when you're selling this contract, you're selling this contract for what price? करेक्ट, शेयर का ही स्पॉट प्राइस है, बट शेयर और कॉन्ट्रैक्ट का स्पॉट प्राइस एक्सपायरी पे सेम हो जाएगा. हार्डली यू विल सी, अगर अभी भी देखेगा ना तो मार्केट में यू विल सी 2-3 रुपए का डिफरेंस. हार्डली. तू क्यों कंफ्यूज हो रहा है मैं तेरे को बोलता हूं. अगर हम लोग हेजिंग कर रहे होते सपोज, तो हमारे पास कमोडिटी है जो हम 520 में ही बेचेंगे, बट हमने तो डिसाइड किया था 500 में खरीदेंगे. समझा तू? तो तेरे को उधर 520 देना पड़ेगा खरीदने के लिए, तो तेरे को पैसा ज्यादा लग गया और इधर तेरे को प्रॉफिट हो गया. सो उधर सपोज कर तेरे पास 200 क्वांटिटी है जो तेरे को खरीदनी ही थी, ओरिजिनली भी खरीदनी ही थी, पहले से डिसाइडेड था. तो तेरे को 520 में खरीदनी पड़ती, तो तेरे को ज्यादा पैसा लग गया. तो तूने इसके लिए पहले ही क्या कर दिया था बेटा, तूने फ्यूचर में एंटर किया था 500 रुपए का. सो अभी इधर देख गेम कैसे होगा. 520 इंटू 200 तू खरीदेगा. कर कितना हो रहा है? 1,02,000 नहीं, 1,04,000 बरोबर बेटा. ये तेरे को अभी खरीदना पड़ेगा क्योंकि ये ओरिजिनल मार्केट है. तेरे को खरीदने थे 200 शेयर और तूने फ्यूचर में एंटर किया था. क्यों? खुद को सेफगार्ड करने के लिए. तो खुद को सेफगार्ड करने के लिए तूने फ्यूचर में एंटर किया था ना, तो तेरे को फ्यूचर में प्रॉफिट हो गया क्योंकि तूने खरीदा था 500 में और तू बेच रहा है 520 में. कितने का फायदा हो गया? 4,000 का. तो तेरा प्रॉफिट है 4,000 का. तो तेरे को 1,04,000 का खर्चा हो रहा है और तेरा प्रॉफिट कितना है? तो तेरा ये 1,00,000 हो गया. तो तेरे को ये शेयर कितने में मिला? 500 में ही मिला. बट ये कब होगा? जब तेरे पास ओरिजिनल पोजीशन बनानी थी. ओरिजिनल मतलब यहां पर तू डिलीवरी कर रहा है ना. मैं बोल रहा हूं फ्यूचर मार्केट में तेरे साथ क्या हुआ है? ओनली फ्यूचर मार्केट प्योर. यस ही अतिक 4,000 है. तेरा इनिशियल मार्जिन कितना था? तो तेरे को 16,000 वापस मिल जाएगा. तेरे को फायदा हुआ है ना, तो तेरे को 24,000 मिल जाएगा वापस. समझा क्या? किसी में भी तेरे को उससे ज्यादा लॉस नहीं हुआ है. ये 18,000 है ना ये. ओके, नाउ गाइस लेट्स प्ले दिस स्मॉल गेम फर्दर. ध्वनि बहुत दिवस પછી આવી બેટા, સુવાના था અહીંયા. Let's play this small game and everybody will participate. If you allow, I would like साथ में ही कर दे, छोड़ो. Guys, same question, let's continue. Same question, let's continue. Let's understand what is mark to market concept. A very important concept. You may expect 5 to 10 mark sums in exam. क्या बेटा? Mark to market concept. Now what is mark to market? What is mark to market?
मार्क टू मार्केट इज सच अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट कि आपने जो ये इंस्ट्रूमेंट खरीदा है, इसी ये सेम एग्जांपल लेते हैं. लेट्स कंटिन्यू दिस एग्जांपल. व्हाट इज द करंट फ्यूचर? करंटली वी बॉट विच फ्यूचर्स? टीसीएस फ्यूचर्स. कौन से मंथ का फ्यूचर्स? मे मंथ का फ्यूचर. सो वी बॉट मे टीसीएस मे FUT which was currently trading at what price? 500. How many shares? 200 shares in 1 lakh. That means technically speaking my current contract value is how much? 1 lakh. I have paid how much margin money? 20,000. अब बच्चों रूल ये बोलता है, I didn't do it. अर्पित, रूल ये बोलता है कि अगर आपको फायदा होगा तो आप रोज प्रॉफिट घर पे लेके जाओ, और अगर आपको लॉस हो रहा है, लॉस, तो आपका रोज अकाउंट सेटल होना चाहिए. अभी टेक्निकली दिस इज जस्ट अ सॉफ्ट वर्ड्स विच आई एम गिविंग यू कि दिस इज हाउ इट हैपेंस. नाउ हाउ विल इट एग्जैक्टली हैपन इज द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व राइट नाउ. So this question is on mark to market. This concept is known as mark to market. If you made profit today, okay, we will transfer that profit money to you, and your margin with us was originally 20,000. Now it is 24,000. So you will get a message कि आपका margin इतना बढ़ गया. Now your money with us is 24,000. You want to withdraw from that or you don't want to withdraw from that? That is your call. So there are some rules which we want to discuss. But did you understand the game? Now let's try to understand that game. If you allow me, only let me do it. एक दो, and then you join in. Okay? And we will see it from both the perspective. Let's get into it. कितना पैसा लिया है हम लोगों ने? What is our contract value? Contract value 1 lakh. We have deposited initial margin of 20,000. So let's continue this. So this is mark to market concept. Say for example, I am a buyer. There is a buyer here and there is a seller. Let's see from both the perspective. What did buyer agree to? I am buying today. At what price? तो उसने कौन सा पोजीशन लिया? Louder. सेलर ने क्या एग्री किया कि बॉस आई एम, मैं बेच रहा हूं. अच्छा, बायर क्यों खरीद रहा है? बायर, हाँ, बायर को लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है. और सेलर क्यों बेच रहा है बच्चों? सेलर, उसको लग रहा है प्राइस नीचे जाएगा. अभी जिसका जो मटका चला वो चलेगा. So here to start with, I repeat, here to start with, let's start. The first day we bought it on 5th. उस दिन रात को प्राइस हो गया 520. कितना हो गया प्राइस? प्राइस हो गया 520. और अब अगर प्राइस हो गया 520, you just tell me किसको फायदा हुआ. अच्छा, मैं इधर पहले खाली लिख देता हूं. We bought 500 per share. How many lot? 1 lot of 200 share. Are we ready for the game? Everybody say. So I will now take every working days here. Okay? Say the 5th May was the first working day and the price became 520. आप सब लोगों ने, इसने भी कितना पैसा जमा करा के रखा है? 20,000. इसने भी कितना जमा करा के रखा है? दोनों का 20,000 हमारे पास जमा है. ये 20,000 किसके पास जमा है? ये 20,000 एक बैंक अकाउंट में जमा है जो जिसका एक्सेस आपके एक्सचेंज के पास. यू हैव डिपॉजिटेड योर मनी देयर. व्हाई द बैंक हैव केप्ट दिस मनी? व्हाई द एक्सचेंज हैव केप्ट दिस मनी? बिकॉज इफ यू डिफॉल्ट तो एक्सचेंज विल नॉट रन टू सर्च फॉर यू. तो एक्सचेंज हमेशा सेफ खेलेगा डिपेंडिंग अपॉन द वॉलिटिलिटी एंड सो ऑन. वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है. फेयर इनफ? दिस इज क्लियर? लेट्स स्टार्ट. प्राइस कितना हो गया बच्चों? 520. आपने 500 में खरीदा है. ओके, लेट्स कीप इट अ गेम. You guys be the buyer, you guys be the seller. Okay, 520 हो गया. Who's happy, buyer or seller? Buyer, because he had originally bought that. Now he got how much? 520. आज का भाव तो 520 है, तो आज रात को उसको नींद अच्छा आएगा. So उसको कितने का फायदा हो गया बोलो फटाफट? 20 रुपए का फायदा हो गया. कितने शेयर्स पर? 200. So my answer would be here, guys. 520 minus 500 into 200. Do you all agree? Everybody? तो इसके बैंक अकाउंट में इसको रात को मैसेज आएगा, 4,000 क्रेडिटेड. इनिशियल मार्जिन में, ये उसके बैंक में नहीं आया, मतलब जो नॉट एक्चुअल, जो उसका मार्जिन वाला है वो. और इस भाई साहब को कोई मैसेज नहीं आएगा. इसको बोलेंगे आप में से 20,000 में से 4,000 तो चलेगा ब्रो. अब आपका बैलेंस हमारे पास कितना है? 16,000. आपका बैलेंस हमारे पास कितना है? 24,000.
We have your balance. This balance is not in our HDFC. This is in our name only, but deposit hold is excess is with the exchange. Clear, guys? Are you all there? Next day. Let's go to the next day. Which is the next day? Say 6th. On 6th, let make the price 550. वापस कौन खुश हो गया बच्चों? कौन खुश हो गया? बायर खुश हो गया. बायर खुश हो गया. तो यहां पर अभी मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? बोलो प्रॉफिट कितना है? 550 माइनस 550 माइनस 500. डू नॉट से 500. क्यों? क्योंकि रोज रात को अकाउंट सेटल होता है. तो अभी जो आपका ओरिजिनल 500 था वो अभी 520 हो गया है. सो आपको फायदा लॉस 520 से चेक करना है. सो योर बेटा 550 माइनस 520. 550 माइनस 520 अमाउंट बोलो इंटू 200 कितना हो गया बच्चों? 6000 इसके अकाउंट में आया, 6000 इसके अकाउंट से गया. इधर कितना हो गया? 30,000. और इधर कितना हो गया? 10,000. अब बच्चों एक चीज याद रखो, सर ऐसा तो सेलर के पास से 20,000 झुपुक 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 कम हो रहा है. अचानक से नेक्स्ट डे अगर 20,000 का लॉस आ गया तो सो बैंक क्या करता है? बैंक आपको दो चीज डिफाइन करेगा. बैंक विल डिफाइन टू थिंग. प्लीज पे अटेंशन. वन इज योर, लेट मी चेंज द कलर. वन इज योर इनिशियल मार्जिन. In this example, initial margin collected was how much, beta? 20,000. And the another very important is maintenance margin. What is it, beta? Sir, what do you mean by maintenance margin? Beta, ये वो पैसा है जिसके नीचे आपका मार्जिन अकाउंट नहीं जाना चाहिए. Even if you are making a loss, आपने 20,000 से चालू किया, आपका लॉस हो गया 4,000 का लॉस हुआ, हमने 20,000 में से 4,000 ले लिया और सामने वाले को दे दिया. अब आपका और लॉस हो रहा है तो 6,000 भी उसको दे दिया. अब आपका अकाउंट बैलेंस कितना है? 10,000. बट अभी मेरे को डर लग रहा है भाई कल उठ के इससे भी ज्यादा हो सकता है. तो बैंक हैव कैलकुलेटेड दैट. तो बैंक बोलता है वी विल मेंटेन मेंटेनेंस मार्जिन ऑफ 12,000. व्हाट डज दिस सिग्निफाई? 12,000 के नीचे पैसा जाना नहीं चाहिए. और जैसे ही गया दुडुम, व्हाट विल हैपन? नाउ यू विल बी कॉल्ड अपॉन बाय योर ब्रोकर कि बॉस अपना मार्जिन मनी कम हो गया है, प्लीज वापस पैसा दीजिए. प्लीज वापस पैसा दीजिए. अब कौन देगा दोस्तों? बायर दे रहा है कि सेलर दे रहा है? क्योंकि वो लॉस कर रहा है ना यार. और ऐसे उसे पैसे मांगेंगे तो वैसे ही वो टेंशन में आ जाता है कि भाई चलो छोड़ो छोड़ो जान दे, एक काम कर, मेरे पास पैसा नहीं तो बेच दे जो भी है. तो ठीक है, तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा 10,000 आपको, क्योंकि बाकी जितना लॉस था वो तो हम लोग ने ऑलरेडी काट दिया ना. हेलो भाई, आर यू ऑल गेटिंग दिस? नाउ he will have to make them payment again. So making payment में रेड में लगता हूं. चलो तो इधर ऐड करेगा वो. ऐड, who will have to add? Seller will have to add. बेटा नाउ तृष्टि बोल कितना ऐड करेगा सेलर? बोल बच्चा, सेलर कितना ऐड करेगा अभी? और कितना पैसा? मारवी 2,000 कभी भी नहीं करेगा. He is not responsible to bring it back to the maintenance margin. जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी जरूरत पड़ेगी, और अगर वापस पैसा मंगाया तो मैं थोड़ी आज अपने 2,000 भरा, कल वापस लॉस हो गया वापस नीचे आ गए उधर ही. अरे यार, आज आपने 2,000 भरा, कल वापस लॉस हुआ तो वापस नीचे आ गया. सो वंश, क्लियर बेटा? वंश, आर यू देयर? अनम्यूट. समझाइए बेटा अबे. सो जैसे ये 10,000 हो गया, एवरीबडी नो मेंटेनेंस मार्जिन इज 12,000. So here you will be depositing only 2 more thousand to bring it back to maintenance, but you never have to bring it back to maintenance. If you have hit down button, maintenance margin के नीचे गया है, you will have to restore back to your initial margin. Restore back to your initial margin. तो आपका initial margin कितना था बच्चों? 20,000. तो यहां पर आ जाएगा 10,000. अब आप 10,000 और लेके आ गए, अब ये 20,000 हो गया. और वो भाई साहब कुछ भी नहीं लेके आए, वो तो मजा है, वो तो सॉर्टेड चल रहा है एकदम. चलो दोस्तों, ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीनर. लेट्स ब्रिंग इट. नेक्स्ट डे, कम ऑन. नेक्स्ट डे आ रहा है आपका 7th में. 7th में और भाव हो गया 560. पार्टी
नाउ चलो कितना 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 प्रॉफिट और लॉस, बायर को प्रॉफिट और लॉस 560 माइनस 520 500 550. Lovely guys. So 550 into how much? 200. So here I think there is a profit of how much? 2000. And here bhai sahab बिचारे को loss is how much? 2000. This is Zupo. This is it. और यहां पर इसका पैसा कितना हो गया ब्रो? 32,000. इसका हो गया 18,000. Are you all there? Everybody is there? Next. प्रांजल क्लियर बेटा? Now सोने नहीं देना मैं उसको थोड़ा. फिर आ गया 8th में. 8th में को बच्चों तुडुम 480 और सारे बायर्स अपसेट. सेलर ने फाइनली गाली देना बंद किया. एंड नाउ योर द प्राइस इज 480. तो बच्चों आप अभी 480 का प्राइस है. तो नाउ यू टेल मी बायर को फायदा हुआ कि लॉस हुआ? सो इट वुड नाउ बी व्हाट विल आई डू? 480 माइनस 560 into 200. Come on, give me answer. कितना? So इस भाई साहब का 16,000 जुपुक और इस भाई साहब को 16,000 आ गए. Clear? Everyone clear? So now this fellow is at 34,000 now, and this fellow is at 16,000 now. Fair enough. Are you all understanding the game? Pakka? Can we continue? Then goes your 9th. 9th को let me take it 450. This is a legit exam sum, beta. This is how they will ask. Only thing is, in exam they will either ask you from buyer's perspective or seller's perspective. Now 450. If it is 450, guys, come on, participate. 450. Who benefited? भाव और कम हो गया. तो seller is happy. भाव और कम हो गया. तो seller is happy. तो your बेटा 480 minus 450, correct? Into 200. 6,000 का लॉस हो गया बच्चों. तो इधर 6,000 विथ कपड़ा और इधर 6,000 इसको मिल गया. तो ये भाई साहब आ रहे 40,000 पे और ये भाई साहब आ गए 10,000 पे. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? कम ऑन, विच डेट? सो योर ही विल हैव टू ऐड मच. कितना ऐड करना पड़ेगा इसको? इसको भी 10,000 ऐड करना पड़ेगा. सो नाउ जुपो दिस इज 20,000 एंड द गेम गोज ऑन. आर यू ऑल देयर? श्योर? कैन आई टेक? लेट्स टेक द लास्ट डे बच्चों. 15th को भाव हो गया दुडुम 420. अब अगर ये 420 हो गया तो आप मेरे को बोलो वापस, हु इज हैप्पी, सेलर और बायर? सेलर इज हैप्पी. ही हैज अ राइट टू सेल एट व्हाट, मतलब. सो यहाँ पर उसको कितना फायदा हो गया? 450 माइनस 420 इंटू 200. योर द आंसर इज हाउ मच? 6,000. लॉस और प्रॉफिट? यस और यस? पक्का? जाओ मैं आगे. इधर बोलो. 6,000 ऐड. वाह, ये हो गया 46,000 और ये भाई साहब हो गए कितना बच्चों बोलो? हाँ 14,000. श्योर? गया ये इनिशियल मार्जिन के नीचे गया? सॉरी, मेंटेनेंस के नीचे गया? नहीं गया. चलो एक काम करते हैं. 16th लास्ट 425. Who's happy? Who's happy? Who's happy? Buyer is happy क्योंकि भाव बढ़ गया. So in that case, guys, 420 minus, sorry उल्टा किया मैंने. 425 minus 420. बोलो कितना? इसको 1000 मिल गए. This guy is at 15,000. उसका 1000 गए. This guy is at 45,000. Did you understand this? एवरीबडी श्योर? अब दोस्तों ये फाइनल प्राइस है. कौन सा है फाइनल प्राइस? दिस इज द फाइनल प्राइस 425. कितने में खरीदा था? कितने में खरीदा था? 500. सो अभी बायर का पर्सपेक्टिव देखते हैं. बायर को टोटल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? बायर को टोटल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? सो लेट्स ओनली लुक एट बायर प्रॉफिट स्लैश लॉस. ही बॉट एट व्हाट प्राइस गाइस? ही हैड टू सेल एट व्हाट प्राइस? सो 425. सो 425 में बेचा और 500 में खरीदा इंटू 200. कितने का लॉस हो गया उसको? 15,000 लॉस. फेयर इनफ. लेट्स टॉक अबाउट सेलर. सेलर पर्सपेक्टिव, he have sold at what price? 500.
बट ही बॉट एट व्हाट प्राइस 425 इंटू 200, तो ये कैसे हो गया बेटा 15,000 का इसको प्रॉफिट. फेयर इनफ, एवरीबॉडी वेरी क्लियर. तो इसको 15,000 का प्रॉफिट हो गया और उसको 15,000 का लॉस हो गया. क्लियर. बट हम लोगों को तो कुछ अलग ही फिगर आ रहा है. इसका 15,000 दिख रहा है, इसका 45,000 दिख रहा है, ऐसा क्यों? Now guys, for a time being, let us do one thing. For a time being, let us say if I want to find out profit not from this, इसको इग्नोर करते हैं. चलो इसको व्हाइटनर लगा दिया मैंने, पेंटेड. ओके, आप मत करना बस. Now how do I get it here for this guy? For which guy? बायर एंड सेलर का ओरिजिनल प्राइस से नहीं कर रहा हूं. हम हिसाब देखते हैं कितना पैसा गया और कितना पैसा आया. लेट्स स्टार्ट. How would you do it? Come on. How would you do it? This is there in front of you. पूरा पिक्चर. बोल अभिराज बोल. Yes. So guys, the game will start with initial margin. कितना था बेटा initial margin? आपने कितना दिया? 20,000. You have paid an initial margin of 20,000. After that, one more time, there was a margin call. Not maintenance margin. Maintenance margin is lower money. It is known as variation margin or margin call. जो पैसा आप देते हो ना नया, उसको मार्जिन कॉल बोलो या वेरिएशन. मार्जिन कॉल कितना आया बोलो. इसने एक ही बार आया ना. कितना बेटा 10,000. तो इसने टोटल पैसा भरा था 30,000. और ये जो लास्ट में मिलता है ना बेटा वापस, उसको बोलते हैं एंड मार्जिन. वो जो इनिशियल मार्जिन था. नाउ दिस इज योर एंड मार्जिन. हाउ मच इज योर एंड मार्जिन योर? 15,000. Oh, hello. Zupo. This is your loss. आपने 30,000 भरा था, बट आपको वापस कितना मिला? खाली 15,000. Look here guys, initial margin. This guys had paid initial margin of 20,000. इसने भी मार्जिन कॉल मेरे ख्याल से एक बार आया था कि दो बार आया था पैसा? एक ही बार आया था ना. So 10,000 there. So total 30,000 less end margin, but he is getting last में जब धंधा बंद हुआ Spotify, and therefore this guy has a profit of 15,000. Are you understanding these? Now this can be your question in exam. Mark to market concept. But did you understand mark to market concept? Every day there will be settlement. Every day. And that is how the exchange will never ever never bear the loss. Because he'll always have that privilege through. सर अगर इसने मार्जिन कॉल मंगाया और हमने फोन ही नहीं उठाया, मतलब नहीं उठाना है भाई, बहुत हो गया अभी, तो कोई बात नहीं, वो बेच देगा उसी दिन. वो ब्रोकर को क्लियर इंस्ट्रक्शन रहेगा, बॉस मार्केट विल सेल इट. फिर आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव ही था ना, क्योंकि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उसके पास मेंटेनेंस मार्जिन या उससे लगभग पैसा रहेगा ही. सो मार्केट विल नॉट मेक लॉस. डिड यू गेट दिस क्लियर? पक्का समझा बेटा? थकेली कशिश. गिव एडिंग मार्क टू मार्केट सेम ही है. ये सेम कॉन्सेप्ट वी हैव कंटिन्यू. एग्जांपल भी सेम ही था वो 500 वाले. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो तुम लोग साथ में ले जाना, छोड़ना. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल तो ये वापस कॉपी करना पड़ेगा बेटा. रुक जाओ, क्यों ऐसा कर रहे हो? ओके, एक काम करो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक पूरा साइड छोड़ दो. लीव वन फुल साइड आफ्टर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. लीव वन फुल साइड आफ्टर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. ओके, जिसके अंदर क्या क्या आएगा? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन एंड उसके फीचर्स. व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन? विल जस्ट रीड इट आउट. It is a standardized contract entered today between two parties under which one commits to buy and other commits to sell a specified asset of a specified quantity on a specified future date at a price agreed today. Future is a variation of a forward contract with some basic definition but with additional features that clearly distinguish future contract from forward contract. Dheer, shut up. Future contract is not private and customized transaction. क्योंकि forward में क्या होता था, हम लोग खुद डिसाइड कर सकते थे, ओके ये क्वांटिटी इस प्राइस पे. Future contract is not private and customized transaction. Instead, it is a public standardized transaction that take place on a future exchange.
The contracts are standardized, which means that exchange decided in the expiration date, the underlying asset, how many units of underlying assets are traded in one lot or contract, and the price and the other returns and condition. Features, it is exchange traded. What was that? Over the counter. Forward contract was over the counter. This is what, guys? Exchange traded. Next, it has standardized quantity, date and month and delivery. There it was customized. Performance obligation is on stock exchange and therefore no counterparty risk. वहां पर counterparty risk था. Price fluctuation risk is eliminated. Mark to market margins available. Settlement of future contract is always cash settled. Always cash settled. क्योंकि future itself is not an asset. He is an underlying asset कुछ और. ये तो भाई साहब डेरिवेटिव प्रोडक्ट है. सो यहां पर कभी डिलीवरी होगा ही नहीं, कभी भी नहीं. इट इज कंपल्सरीली कैश सेटल एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर लिक्विड. लिक्विड कैसे, मैंने बताया ना आपको, आप कभी भी उसमें से एग्जिट कर सकते हो. तो ये इतना लिखने के बाद यू विल गिव द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज मार्क टू मार्जिन. दिस आर सम डेफिनेशन आई विल गिव यू लेटर. आप अभी एग्जांपल कॉपी कर लो. गिव हेडिंग मार्क टू मार्केट दिया, उसमें एग्जांपल लिखो. एग्जांपल may FUT TCS, may FUT TCS. एक साइड छोड़ने के बाद फॉर फ्यूचर यू आर राइटिंग may FUT TCS is traded at rupees 500. Lot size 200. Lot size 200 share. Lot size 200 share. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फॉर वन लॉट, 500 into 200 is equal to 1 lakh. 500 into 200 is equal to 1 lakh. Initial margin 20,000. Initial margin 20,000. Maintenance margin 12,000. Maintenance margin 12,000. Maintenance margin 12,000. Now copy this case. Mark to market. यस बेटा. मैं लिखाता हूँ. क्या बोला बेटा?
Yes, you have to restore it back to your initial margin, बच्चों. Yes, but hedgers do prefer. In fact, hedger is a very safe. If you see the option that there is a opportunity available, better price than the forward market, they do go, because hedger is always safe, beta, because he has in one hand he has delivery ना, तो वो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस करेगा और एक्चुअल मार्केट में जो भी प्रिवेल होगा वो उसमें ऑफसेट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल तेरे को फ्यूचर में 500 तेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी है जो तेरे को बेचना ही है एंड यू आर स्केयर अबाउट व्हाट विल बी द प्राइस, तो तू आज फ्यूचर बेच दे 500 रुपये में और तूने आज ही बेच दिया, फिर भले वो 600 हो या 400 हो, तेरा 500 में डील हो गया. फ्यूचर मार्केट में तेरे को डिफरेंस का लॉस होगा और स्पॉट मार्केट में वो एडजस्ट हो जाएगा. सो यू विल बी इवेंचुअली लैंडिंग अप ओनली एट 500. समझा मैं? यस बेटा. शेयर के स्पॉट प्राइस नहीं बेटा, वो फ्यूचर के प्राइसेस है, बट वो शेयर से डिराइव्ड हुए. दिस आर नॉट स्पॉट प्राइस. एक्चुअली क्या होता है, यू अंडरस्टैंड दिस, योर फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस इज दिस ओनली एज यू, योर स्पॉट प्राइस टुडे इज से 500, ओके, एंड मे एफ इट इज 510. तो एज यू मूव क्लोजर, गैप तो रह गई, अगर ये नीचे गया तो ये भी नीचे जाएगा, ये ऊपर गया तो ये भी ऊपर जाएगा, पर जैसे ही आप एक्सपायरी के क्लोजर होते जाओगी ये गैप का डिफरेंस शॉर्ट होते जाएगा. समझाता हूं, इधर देख, ये डायग्राम वापस सिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम पे, बट अभी ये सपोज दिस इज योर शेयर प्राइस, दिस इज योर एक्सपायरी डेट. समझा? So your future price will have more gap on day one. तो वो भी as you'll reach expiry beta, it would be very close to the spot price. ऑलमोस्ट स्पॉट प्राइस पे, एक्चुअली स्पॉट प्राइस पे मिलेगा. एक काम कर दो, डालते हैं इसमें अपन. नॉट ट्रेडेड ऑन BSC. चलो कोई दूसरा शेयर बोलो. हाँ, ये मांग रहा है लॉगिन आईडी, बट आई शो इट टू योर ऐसे मोबाइल. बट बेटा यू विल सी ना एक्चुअल में. अभी अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक बार मार्क टू मार्केट होगा ना, नाउ वी विल प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस. हाउ इज द फ्यूचर प्राइस डिराइव्ड? फ्यूचर का प्राइस, हाउ इज दैट डिराइव्ड? दैट विल बी अवर टॉपिक. क्लियर गाइस? ओए क्लियर? चलो एक काम करते हैं, आई थिंक विल टेक अ ब्रेक. बट इधर तक समझा सब लोगों को? श्योर? एकदम क्लियर? चलो, सी ऑल इन 30 मिनट्स. थैंक यू.